पॉइंट ऐसा आया कि मैंने मेरे 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे, बहुत करीबी, मेरा पड़ोसी भी था, मैंने उनसे बात करना छोड़ दी. So did you treat it more like a skill than a language? For me, this is my career. इंग्लिश ऐसा मैं इसको सब्जेक्ट नहीं कंसिडर करूँगा आपके लिए. I said, now I will continue my education in Karachi. I don't think so I should go back to Lahore. अपने इंटरमीडिएट में थे, आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ थी लाइक वेयर यू आर गोइंग? ऑब्वियसली इतने अर्ली स्टेजेस पे कोई अपनी करियर काउंसलिंग तो कर नहीं सकता. Right. Assalamu alaikum. Welcome to the first episode of Minutes of Positivity, a podcast by Each One Teach One Foundation. Today I have my special guest, a very, very special guest with me, Sir Naeem Abbas, who is the CEO and founder of 24/7 Consultancy. And with me today we have a very special host with me, Miss Nurul and Heather. Sir, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, I'm fine. How are you? Alhamdulillah, I'm good. सर स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से. आपके यानी वेयर यू बॉर्न एंड आपके जो इनिशियल एजुकेशन थी वो कहाँ से थी, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें ताकि उस एरिया के बारे में भी हमें थोड़ा सा स्पेशलिटी बताएं कि आप जहाँ से थे, द डेप्थ ऑफ द सिटी, क्योंकि वी रियली वांट टू नो कि द पर्सन यू आर नाउ, उसमें बैकग्राउंड जो है आपका उसका कितना किरदार है? Sure. So let me tell you the little details on where I was born. So I was born into a small village of Multan. So basically Multan was our division. It was district Lodra and Tehsil was Karot Pakka, and then there's a small town in that Tehsil that is Ranavan. So I was born in there. So like everybody else in the city, we only have one government school. That was the only school, no private school in that area. So I started my initial education from there. It was, I think, all times, it was like class 6 when I first started learning ABCD. It was Urdu medium school. And what was the year? It was, I think, 1996. Okay, fine. So I was born in 1986. Okay. So 1986, I did my primary education. And 2001, I completed my matric. It was like one high school in our area that was in Karot Pakka. So I got admission there. Like everybody else, every parent wants their child to be doctor those times. So I started my career to become a doctor. And then I did my biology, mathematics, and chemistry. I got A grade in that. Oh, nice. But while clarifying my matriculate, I got the realization that I may not be a good fit for a doctor. So I decided to go into engineering. By that time, my brother was shifted to Karachi. So he said, okay, why don't you come to Karachi and learn some English or computer? Because I never got the introduction to these two things. And I thought if I want to be successful, I think the very first thing that I could do when I go to Karachi to learn English. So I went there in 2001. By the time I was waiting for matriculation results, I went to Karachi and I took admission into a language center and started learning English. While I was learning English, I got my result. And I got a supplementary in mathematics. In intermediate? In matric. In matric? Yeah. So while I was waiting for the result, I went to Karachi. Okay. Right. During the time I was learning English language, I got my result announced back in Punjab. And I got a news that I'm failed in mathematics. So you could imagine what a brother could do. A brother especially who has a lot of high hopes on you. And everybody, like, they do not accept failure. In small hometowns, when they invest, basically when they teach their kids, they have kind of investment they make on their kids. Either they want you to be bureaucrat, like you do CSS, get a kind of high profile job, or you do become a doctor. Engineer is when you don't want to become a doctor or you do not have skill set to be a doctor. They, okay, just go towards engineering. Okay, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा. Like जब आप अपने इंटरमीडिएट में थे, आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ थी लाइक वेयर यू आर गोइंग? ऑब्वियसली इतने अर्ली स्टेजेस पे कोई अपनी करियर काउंसलिंग तो कर नहीं सकता. इतने अर्ली स्टेजेस पे. एंड उस टाइम पे भी ऑब्वियसली हमारे पास करियर काउंसलर नहीं थे उस तरह सोशल मीडिया बिल्ड नहीं था कि जिससे हमें सपोर्ट एक मिल सकती थी. क्या वो ऐसी चीज़ें थी, क्या वो ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस टाइम हो रहे थे एंड यू वर अ बिट
यानी आपके पास थोड़ी सी रियलाइजेशन आ रही थी ऑफ द फैक्ट कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं. इज़ देयर एनी यानी रियलाइजेशन एट दैट टाइम कि आप बेहतर ट्रैक पे हैं या आपको ट्रैक चेंज करना चाहिए इन व्हेन यू आर इन मैट्रिक? Well, honestly speaking, while I was in matric, I was following the dream of my parents and my brothers because they wanted me to be a doctor. I thought, okay, I'll be a doctor. But by the time I was into exams and I got my result, so I realized maybe mathematics is okay, but biology is not my cup of tea. So I thought I won't be a doctor. So I went into engineering. I did my FSC from National College Karachi. And while I finished the exams of FSC, I was at the point to decide, no, I'm not going to be an engineer too, because I don't have those guts as well. Okay. Because parabola and hyperbola, sabne bola main bola. Because that was too difficult for me, and I was not a kind of very bookworm kind of student. I just went with the flow, right? I remember like my mother and my parents used to say, okay, you don't study a lot. Your friends, your cousins, they do study a lot. And I was like, when I can learn something in 30 minutes, why should I spend 2 hours in front of the book? That's it. I'll clear the exams and I don't want to be a topper in my class or something. I just want to get the basic education and then I'll see what happens. So the same thing happened when I completed my intermediate from Karachi. So, it was 2003. And 2003, by that time, the situation of Karachi city was totally bad, and there were a lot of politics in the universities. Back in 2003. Okay. Right. So the time was to get introduced to a university. So I decided to see if I can go to Karachi University, but then there were a lot of politics going on. There were a lot of political organizations. So my brother actually suggested me that if you go to Karachi University, there are chances you're young and you may get spoiled because there are a lot of organizations working like APMSO and all other kind of organizations were working in university. They were politically very active. So everybody in the family, because in those times, even like today, most of the families don't let their kids to decide for their future. So they decided for me. They said, why don't you go to Lahore for doing your BCom? I told them, no, I won't be an engineer. So I'll do a BCom. And for BCom, they said, okay, Punjab College is one of the best colleges. So why don't you go and get enrolled there? So one of my cousins came from Multan, took me from Karachi, and then we reached Lahore. I gave my interview, and then I started my BCom. I spent 2 years in hostel life. So I got that gist of the hostel life as well, plus the family life and from family. So Multan, then Karachi, and then I had 2 years of experience living in Lahore. So I think that was the main turning point in my life where I was able to meet people from different areas, people from different perception, different languages, and I was able to get exposure to different languages too. And since I was a student of English language in Karachi, I learned English. So when I came to Lahore, while I was doing my BCom, I started teaching English language as a part-time as well. While I was doing my BCom, I was teaching. So I remember when I cleared my exams, my brother came from Karachi and said, we are going to Murray with my friends for a trip. Why don't you come join us? So I went with them. And while they were going back home, I said, why don't you take me back to Karachi? Because you guys are going and I'm free from my exams. I went there. I never came back to Lahore. Because I said, no, I will continue my education in Karachi. I don't think so I should go back to Lahore. So I stayed there. I got my exams. And one of the other honest truth I'm going to tell you today, I only got my matriculation degree and got my intermediate result sheet. I have never collected my intermediate degree. I've never collected my BCom degree. अच्छा, It is still there in Punjab College. क्या कभी जरूरत नहीं पेश आई? Never. That's another astonishing fact I would like to tell you, that degrees are just a piece of paper I'm telling you guys. Right? This is coming from a person who has been successful after a lot of struggles and hard work. And I've been to many, many interviews when I was doing my jobs, right? And nobody asked for the degree ever. I used to be in the interviews, and if you are polite on the interview, you can answer the questions confidently, they get you the job. There are a lot of job opportunities. If you know what you have to do and you are dedicated and hardworking, people will hire you. What we do, we spend a lot of our time into education, and when we get to the real world, we don't have that exposure because our universities don't teach us what we are taught or we should be taught. That's the biggest problem. Exactly. We're not having exposure to the actual real scenarios, what we face on the job.
So last year I happened to go to Lahore. So while I was in there for a couple of days, I thought I should go to my college. So I went to my college and said, "Well, my name is Naeem Abbas and my roll number was 3793. Would you please check my degree?" And they were like, what was the year when you completed your BCom? And I said, that was 2006. Okay. And they were like, it's been like how many years? You never got the needful degree? And I was like, I never got that. So if you could find it out. So ultimately they found the degree by going to so many records. And they said, no, you have one fee pending as well. That is 16,000 Okay. rupees. Because back in the days, I was like a kind of student, like we used to have fun with friends and okay, exams were given, that's fine. आपको पता होता है कि आपके पास लिमिटेड सी मार्क्स है। Exactly. तो मुझे अब याद आ रहा है कि शायद जो लास्ट फीस थी मेरी मैं खा गया था। Okay. So I didn't pay that. Right. So the degree is still there because they said, okay, we want 2 more days, you have to stay. And I said, okay, that's fine, then keep it yourself. I just came and thought, if I get it, I can pay you 16,000 rupees, that's not a problem. But I cannot stay for another 2 days. So that is still there. Next time if I go there, I'll collect my degree. चलें इंशाल्लाह. That's how it is. Alright. फिर आगे आपने BCom के बाद आपने किस तरह Yeah, pursue so after किया? BCom, I went to Karachi again, as I mentioned. So while I was in Karachi, I thought I should do MBA. Well, I'll be a businessman now. Right. And I got admission in Iqra University, Karachi, Mission campus. I started my MBA over there. And while I was doing my MBA, again, I thought the need for doing something for myself because the parents can only give you your fees and everything. But ultimately, at the end of the day, when you're getting older, you basically want to do something for yourself. So I started teaching into a coaching center. English was my thing, so I thought I should start teaching English language. So I started teaching English language in a small, very, very small institute. I remember they used to pay me around 8,000 rupees for teaching for 8 consecutive hours. So I had For a month. for a month, yeah. Okay. The whole month, if I teach 8 hours a day, Monday to Saturday, not Monday to Friday, 6 days a week. And then for the whole month, when I finish that, even if I'm going to be an hour late, they'll cut the salary for that particular hour. So they divide all those 8 times, whatever the month is, with the hours, and then they hourly calculate the wage rate. And they pay me accordingly. So 8,000 was the maximum I could make for teaching every day, 8 hours, 6 days a week, and the whole month. अच्छा, so far you've told that starting से आपके decisions कभी बड़े भाई ले रहे हैं, कभी parents ले रहे हैं, so you weren't really able to take your decisions. जब आपकी degree होती थी तो you realize कि this wasn't my thing. तो MBA की तरफ किस तरह से गए? You said that MBA आपने खुद से किया. How? Well, that was the kind of thing that I convinced them कि भाई देखें BCom कर लिया तो BCom के बाद तो MBA बनता है ना. But they were like, you should go to LUMS in Lahore. And when I came to Karachi, मुझे लगा कि यार लाहौर में नहीं जमेगी लाहौर के साथ. So it's better I should stay in Karachi because I had friends. क्या thoughts थी लाहौर को लेके? लाहौर को लेके thoughts ये थी कि like क्योंकि I went from Karachi, तो मैं जब गया when I was in Multan, I was not even having exposure to Urdu speaking. मैं जब कराची गया तो कराची मुझे उर्दू सीखनी पड़ी पहले. इंग्लिश तो बात की बात थी ना. The truth is कि पहले मुझे उर्दू बोलना सीखनी पड़ी. और by the time I learned Urdu, I had that kind of कहते हैं ना accent जो होता है आपका कराचीite का वो आ जाता है. So when I was in Lahore, तो all the Lahoris used to call me भैया. Okay. Right? क्योंकि उनको लगता था जो कराची से आता है जो उर्दू थोड़ा सा कराची के लहजे में बोलेगा तो वो भैया होता है. तो everybody used to call me भैया भैया भैया. ओ भैया बात सुनो भैया ये करो भैया ये करो. तो I thought कि it's better to stay with the bhaiyas, not to go back to Lahore. Rather than being called a bhaiya. Yeah, rather than being called a bhaiya. Right? So I stayed in Karachi. I got my admission. So while I was studying, the first or second semester, I started teaching again. क्योंकि मुझे लगा कुछ खुद से करना चाहिए. At least अपने खर्चे पूरे कर लेंगे. So I continued my teaching, and of course at this time I knew my family won't support that I should do anything else with the teaching. With MBA, they would never allow me to do any job or teaching or anything. Right? So I did not tell anyone. I told everybody in the family that मेरी classes late होती. तो मैं सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी जाता था, 8 बजे यूनिवर्सिटी गए. आपको तो डेली के आपके maximum 2 classes होती थी आपकी. तो 8 to 11 and then 11 to 2 आप 2 बजे फ्री हुए. मैं कहता था भाई उसके बाद मेरी 3 क्लासेस होती हैं और मैं उसके बाद दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ या कोई कंबाइंड स्टडी कर लेते हैं. तो आई यूज्ड टू कम बैक एट होम अराउंड 6 PM in the evening. तो मैं वो 8 घंटे इस तरह से निकाल के आई डिड नॉट टेल एनीवन एट होम एंड आई स्टार्टेड टीचिंग. कितना अर्सा आपने टीचिंग की? 2007 से लेकर 2012, 5 years. एंड टाइम को किस तरह मैनेज कर रहे थे? क्योंकि अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है अब की जनरेशन के लिए समझना
कि अभी की जो जनरेशन है वो ऑब्वियसली जब अपनी डिग्री के अंदर आती है, अपनी ग्रेजुएशन के अंदर आती है, तो वो उनकी 4 ईयर की जो डिग्री है वो जस्ट अपनी डिग्री को ही लेके चल रहे होते हैं, परस्यू कर रहे होते हैं. इन रिगार्ड्स टू दिस, इन कंपैरिजन विद दिस, हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को कि वो अपने बच्चों को जैसे ही इवन जब वो कॉलेज लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को यानी अर्निंग की तरफ लगा देते हैं ताकि एक आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली ऑन आना शुरू हो जाए. व्हाट डू यू थिंक, कितना उस चीज़ ने आपको अब कितना चेंज किया है उस सिनेरियो ने कि यू आर डूइंग द जॉब, proper job obviously, along with the MBA, along with all the your degree stuff, कितना उस चीज़ ने आपको बिल्ड किया, कितना चेंज किया कि अब जिस सिनेरियो में आप हैं लाइक किस तरह बिल्ड हुए? I think that exposure to the industry, real world, trained me to be where I am right now. क्योंकि जब आपको hurdles और hardships नहीं मिलती, it's very difficult for you to become a kind of person that is defined, that is ready to take challenges, right? प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं कि इट्स ओके, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फोकस ऑन द स्टडीज, जब काम की बारी आएगी जब काम कर लेना. बट आई डोंट थिंक सो दैट हेल्प्स यू एज ए genuine entrepreneur if you want to become, or even if you want to be successful in any particular venture. That is very difficult if you get the exposure. It will take maybe 3, 5, 10 years for you to become successful in any areas, right? So I think that exposure helped me a lot. And teaching is something where you basically come to the level of the other people and then try to make them understand. That is one of the basic part that plays a vital role when you are into a management position, right? क्योंकि जब आप जॉब स्टार्ट करते हो तो आप आफ्टर यू स्टार्ट अ जॉब यू बिकम सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट एंड यू बिकम अ टीम लीड और यू बिकम अ मैनेजर. And when you become a team lead or a manager, what you do, you basically convince people to listen to you. The same thing you do when you are a teacher. So I think that teaching helped me a lot. And it was not like a part-time teaching thing. It was a full-time something that I accepted for myself. And even initially, the early years of my career while I was doing my MBA, and even after I finished my MBA in 2009, I was with the mindset that I'll be a teacher forever. I'll get a job, maybe a professor in a university, and then I'll have my own institute. I'll open a school or a institute for English language or any particular education institute I'll be running in the future. So with that mindset, after completing my MBA, now Domino English Learning Center was a kind of institute where I learned English from. ओके, यहाँ पे मैं एक मेरे क्वेश्चन रेज हो रहा है. थ्रू आउट योर जर्नी अभी तक की जितना हमने एक्सप्लोर किया है, इंग्लिश ऐसा मैं इसको सब्जेक्ट नहीं कंसिडर करूँगा आपके लिए, बिकॉज आपके लिए इंग्लिश जो थी वो It was a game changer. यस एग्जैक्टली. कितना आप इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो रही थी उस टाइम पे, या किस चीज़ ने आपको इंग्लिश की तरफ इतना यानी अट्रैक्ट किया था कि आप इंग्लिश को आगे एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर लेके चलना चाह रहे थे? बेसिकली प्रॉब्लम ये था, एज आई मेंशन्ड, कि जब मैं कराची आया तो मुझे उर्दू बोलने में प्रॉब्लम था. लोग मेरा उर्दू बोलने में मजाक उड़ाते थे. तो आई थॉट कि इनके साथ मैं इस लेवल पे जाऊंगा कि मैं इंग्लिश बोलूंगा और इनको समझ में नहीं आएगी मेरी बात. आज जब भी मैं उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ, दे मेक फन ऑफ मी. Okay. So at a point I will actually show the world, or at least show these people that I can do a lot better. It's just the exposure I did not have. Once I get the exposure, I'll try to be better. So I was trying to better myself every day. So I remember when I took admission in the language center, I used to come back home, close my door, speak with the mirror. Every day, that was my routine for hours and hours and hours. I used to talk to myself, try to correct myself that how am I pronouncing the words? Am I am I repeating the sentences correctly? Or where my mouth is going, the way I'm just reacting if I have to speak in front of the audience, how should I behave? What should be my way of talking? How should be the hand movement and all that stuff. So I'll focused a lot on that, right? And even I remember मेरे जो कुछ दोस्त थे जो उर्दू बोलते थे उस टाइम पे, हम साथ में जाहिर सी बात है हमने इंटरमीडिएट साथ किया, तो उस दौरान मैं सीख भी रहा था इंग्लिश. तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई तुम महफिल के आदाब का ख्याल नहीं रखते हो, सब उर्दू में बात कर रहे होते हैं, Okay. इंग्लिश में शुरू हो जाते हो. तो मुझे याद है कि एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरे 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे, बहुत करीबी, मेरा पड़ोसी भी था, मैंने उनसे बात करना छोड़ दी. Okay. I said, for me, this is my career. If I have spent a lot of money on learning English, if I don't speak English, I'll forget. Because language is all about practicing. The more you practice, the more you... So did you treat it more like a skill than a language? Yes,
treat it as a skill, because it's not just a language, it's basically a international language where you have exposure to the world, right? You can make yourself heard everywhere if you can converse to the language they understand, right? तो मैंने कोई 6 महीने तक अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से बात नहीं की. So after 6 months he came to me and said, Naeem, I want to learn English. I said, that's the point. Then I started teaching him myself, right? And I gave him a little introduction to the language. फिर उसने एक institute में admission लिया, and later on he became an English language teacher. Oh, nice. Right? Then I met another guy while I was playing cricket. तो मुझे किसी लड़के ने मिलवाया कि यार ये नईम भाई हैं. His name was Kamran. Right? तो Kamran is still my very very good friend. तो हम जब 2003 में मिले तो he was just I think he has done matric or he was doing some kind of job, daily wages job in Karachi University. तो when I was introduced to him तो he was very much interested in English. नहीं आपको इंग्लिश आती है? मैंने कहा बिल्कुल आती है. अरे मुझे सिखाओगे? मैंने कहा why not? तो I started teaching him. तो मैं उसको पार्क में ले जाता था या किसी ग्राउंड में. कराची में बहुत ग्राउंड होते थे उस जमाने में, अब तो सारे उन्होंने चाइना कटिंग के हवाले कर दिए, लेकिन वहाँ पे हम जाके बैठते थे रात को के बाद. तो I used to teach him कि भाई my name is Kamran or this is Kamran, and then you could make it negative. This is not Kamran, is this Kamran? And I tried to teach him very basics. तो जब वो उसको बेसिक्स आना शुरू हुई तो मैंने कहा एक काम करो, डोमिनो इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, बिकॉज मैंने वहाँ से सीखा है. अब तुम वहाँ से ना एक कोर्स वहाँ से कर लो 3 महीने का, तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू. तो देन ही वेंट टू डोमिनो, ही डिड इट 3 months कोर्स. और डेली हमारी रूटीन होती थी कि एवरी डे ही यूज्ड टू कम टू मी, हम बैठ के बातें करते थे और कोशिश करते थे इंग्लिश में बात करें. फिर जब उसका कोर्स खत्म हो गया और वी गॉट मोर एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, हम सोचते थे कि हम डेली कुछ ना कुछ बेटर सीखें. हमारा प्लान ये था कि हमें सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलनी, बल्कि हर वो सेंटेंस जो उर्दू में हमारे जुबान पे आता है, जो हमारे कानों को टच होता है, जो लोग बोल रहे होते हैं, उसको हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, क्योंकि दिस इज कॉल्ड अ लैंग्वेज. अगर आपने 2 4 5 10 जुमले सीख लिए, टेंसेस सीख लिए, तो दैट इज नॉट अ लैंग्वेज. तो फिर हमने क्या किया, हमने उर्दू की बुक उठाई 6th क्लास की, और हमने सोचा कि हम हर जो चैप्टर है उर्दू का हम उसको पूरा ट्रांसलेट करेंगे. और वाइल कामरान वाज गोइंग टू डोमिनो, मैंने कहा फायदा ये होगा कि तुम क्योंकि जा रहे हो, मैंने डोमिनो छोड़ दिया है, वी नीड टीचर टू हेल्प अस फॉर डिफरेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन इंग्लिश. तो एक काम करते हैं, वाइल यू आर गोइंग देयर, हम इस बुक को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं. इसमें सारे वर्ड्स आएंगे, जिस सेंटेंस में हम फंसेंगे तुम टीचर के पास ले जाना और टीचर से इसकी इंग्लिश पूछ के ले आना. तो ही यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि हम एक लड़का हम बात सुन रहे थे, उसने कहा जी मैं यूं गया और यूं आया. तो यू वर लाइक यूं गया और यूं आया इंग्लिश का हो. Okay. तो these kind of sentences we started asking our teachers. They got very happy कि भाई ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए. तो I still remember हमने टीचर से पूछा. अच्छा, मैंने फिर एक एडवांस लेवल कोर्स है डोमिनो को, उसमें एडमिशन ले लिया. तो एडवांस लेवल कोर्स में सर अतर वहाँ के बहुत फेमस टीचर थे, नीपा कैंपस में पढ़ाते थे. तो उनसे मैंने पूछा कि सर मैं यूं गया और यूं आया. तो आई रिमेंबर उन्होंने अपना मार्कर उठाया, उन्होंने बोर्ड पे लिखा आई विल बी बैक इन अ जिफी. सो आई स्टिल रिमेंबर दैट सेंटेंस, मैं यूं गया और यूं आया, आई विल बी बैक इन अ जिफी. ओके. उस टाइम कितना यानी इस कोर्स के जो आप उस टाइम कर रहे थे, कितने चार्जेस थे? क्योंकि अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत हैवी चार्जेस लाइक दिए जाते हैं इस चीज़ के. 1,000 rupees per month. Per month? Yes. Back in 2003. 2003. Yeah. असल में मैंने 2001 के आखिर में स्टार्ट किया, नवंबर दिसंबर में. तो 1,000 रुपीज पर मंथ था रेगुलर कोर्स उनका. और अगर आप एडवांस कोर्स करते हो जो कि 1 महीने का फॉर 2 hours डेली, और जो उनका रेगुलर कोर्स था वो 3 hours डेली. द गुड थिंग अबाउट डोमिनो वाज लाइक आपको 3 घंटे रोजाना पढ़ाना है, तो यू आर स्पेंडिंग मेजर पोर्शन ऑफ योर डे विद इंग्लिश लर्निंग एनवायरनमेंट, राइट. तो उससे आपको एक आपके ऊपर फुटप्रिंट्स रह जाते हैं लैंग्वेज के ना. तो आप 1 घंटा ग्रामर है, फिर 1 घंटा ऑडियो वीडियो है, फिर 1 घंटा कॉन्वर्सेशन है. तो अगर उन्होंने हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, तो उसके बाद में ऑडियोज और वीडियोस सुनाएंगे, दिखाएंगे, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लोग बात कर रहे होंगे. दे आर मोस्टली अमेरिकन और कैनेडियन और एक्सेंट का एक्सपोजर आपको. फिर आपने एक टॉपिक उन्होंने देने का, फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है तो आपने डेली रूटीन बतानी है. तो एवरी स्टूडेंट वाज गिवन एन असाइनमेंट कि आप आए क्लास के सामने खड़े हो एंड टेल अबाउट योर डेली रूटीन. एंड इन रूटीन यू नो यू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आपको चीजें रिहर्स होना शुरू हो जाती है. तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई लव्ड अबाउट डोमिनो. और फिर क्या हुआ कि एट अ पॉइंट आई started to feel the need कि अगर मैं टीचिंग कर ही रहा हूँ तो why not I apply at Domino as a teacher. तो I applied there as a teacher और मैं रिसेप्शन पे गया. मुझे वो सारी बातें इसलिए याद हैं कि क्योंकि that was a kind of achievement for me. Yes, exactly. कि जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा है आप उसके टीचर बन सकते हैं. Exactly. A lot of struggle is going behind it. And उसके पीछे आपका पैशन obviously था, एक ड्रिवन पैशन था. That is always there. आपको कुछ भी करना है, without passion you can't achieve. Yes. तो मैं गया रिसेप्शन पे
and I'll show you some of the pictures after the For sure. podcast. Sure. The way I looked back in the days, right? तो मैं रिसेप्शन पे गया तो मैंने कहा जी मुझे फॉर्म चाहिए, तो उन्होंने मुझे स्टूडेंट वाला फॉर्म दे दिया. मैंने कहा नो टीचिंग वाला फॉर्म चाहिए. Okay. So they were like, what? Yes, I'm your student. I did my course from here back in 2002 and 3. And that was 2007 when I went to Domino. तो उन्होंने मुझे टीचिंग का फॉर्म दिया. I filled the form and they said, okay, wait. मैं वेट करने लगा. They called me after 5 minutes. They said, Mr. Iqbal Ali Judge will conduct your interview. He was the pioneer owner of the institute. फिर उनके बेटे थे 5, तो उन्होंने हर बेटे को एक सेंटर बना के दिया, different areas of Karachi. And then उनके बेटे माशाल्लाह उनको जन्नत में जगह थे. He was a very kind person, a very great mentor to me. तो उन्होंने मुझे कहा कि नईम, I looked at your form, you have been our student. I said, yes, I have that privilege. And he was like, then tell me, what can you teach? Grammar, conversation, or audio video? I said, well, I love grammar, but then if you ask me to teach conversation, I can do that as well, and audio video too. And he was like, then you're going to put yourself in trouble, because if you say grammar, then I'm going to ask you difficult questions. Yes. And I was like, okay, that's fine. I actually want myself to be tested, and if I can answer those questions, I'll be proud of. You were more into taking challenges. Exactly. So he asked me 2 questions. I remember those questions as well. One question, if the first was, what is infinitive? So I had that exposure because after leaving Domino, I did not leave learning. So I went into different books. तो एक किताब में मैंने पढ़ा था कि what is infinitive. So infinitive is 2 plus first form of the verb. Yeah. So if you use 2 verbs together and you put 2 in between, that is infinitive. Like I want to go home. So want is a verb, go is a verb, 2 is an infinitive, right? Yeah. Yeah. So that is infinitive. Mhm. I told him that 2 plus first form of the verb is infinitive. He was like, very good. But now tell me what is bare infinitive. Hmm. And luckily I knew the answer for that too. Okay. Bare infinitive is basically when you use first form of the verb without Hmm. to. That is Okay. bare infinitive. Like, I Okay. go home. The word go here is a verb, but in linguistic term, grammatically, it is known as bare infinitive. Right? Hmm. So I told him that. I said, okay, excellent. When can you join? And I was like, I can join from tomorrow. Oh, great. Okay. So I got the job. He said, Naeem, now again, the word 8,000 figure is still there. Right? वो मैंने जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया था उसमें 8 घंटे के 8,000 मिलते थे. Hmm. ही सेट कि देखो नहीं, हमारी पॉलिसी है, हम किसी भी टीचर को 4 घंटे से ज़्यादा ऑफर नहीं करते, मैक्सिमम 4 आवर्स. और उसके पीछे रीज़न क्या है? हमें लगता है कि एक टीचर 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाएगा तो थक जाएगा, वो अपना 100% नहीं देगा, स्टूडेंट सीखेंगे नहीं. तो 4 आवर्स एंड विल पे यू 8,000 रुपीस. Okay. So it was like not double. The Exactly. income was doubling here. Yes. पहले 8 घंटे के 8 Less hours से. And the good thing was that you are going to be a teacher at Domino, which is the biggest and the best institute in Karachi. Hmm. Right? So I got that exposure, got the job, went there, started teaching grammar initially. Perfect. अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि आपने सारी अपनी स्ट्रगल बताई, किस तरह से आपने इंग्लिश सीखी एंड ऑल, एंड हाउ यू स्टार्टेड टीचिंग टू योर फ्रेंड्स एज वेल, फिर आगे Yes. जाके प्रोफेसर्स बने एंड ऑल. तो आपका इस सारे टाइम में कोई मेंटोर रहा है, कोई आइडियल रहा है, या कोई ऐसा जो आपको साथ साथ ट्रेन करता रहा हो, सिखाता रहा हो, जिसको आप एज अ मेंटोर डील करते हो? Again, Domino was the only institute where I learned from. After learning from Domino, जब Domino का regular, उनका था basically Domino के different levels हैं. When you go for an interview for learning English language, पहले आपको interview लेते हैं. पहले आपका written test होता है. Written test में आपकी grammar और बेसिक चीज़ें देखते हैं. उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है विद द ओनर ऑफ द कैंपस. तो उन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे. उन्होंने व्हाट्स योर नेम, तो मैंने कहा नईम अब्बास. Hmm. फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, मैंने कहा मैट्रिक. तो थर्ड क्वेश्चन था हु टोल्ड यू अबाउट डोमिनो. यू अंडरस्टैंड राइट? या. मुझे समझ में नहीं आता ये सवाल. Okay. हु टोल्ड यू कि जवाब क्या होता है. तो आई वाज क्वाइट और उन्होंने मेरे फॉर्म लिया. फॉर्म पे लिखा एफडी. Hmm. एफडी स्टैंड्स फॉर फाउंडेशन. फाउंडेशन मीन के इस बंदे को पहले एबीसीडी सिखाओ, बिल्कुल फिर इसको initial. एसएमआर सिखाओ, Yes. फिर इसको प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर बेसिक इंडेफिनेट, से स्टार्ट 3 करते टेंसेस सिखाएं पूरे महीने में. इज एम आर, वॉज वर, विल बी और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंसेस पढ़ाने हैं. दैट्स इट. और 1 घंटा ग्रामर, 1 घंटा कॉन्वर्सेशन. और बताना है कि आप अपने बारे में बताओ, अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में बताओ. छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर आपको हल्का फुल्का बुलाना सिखाना है. तो दे पुट मी इन फाउंडेशन क्लास. 1 महीने में फाउंडेशन में लगाया, 3 महीने रेगुलर, 4 महीने और 1 महीना एडवांस, 5 महीने लगा दिए. आई लर्न एवरीथिंग दैट डोमिनो कुड टीच मी. अब आई हैड द हंगर के अभी भी मुझे इंग्लिश तो नहीं आती उस तरह से जैसे मैं बोलना चाहता हूँ. आई डिड नॉट हैव द फ्लुएंसी, आई डिड नॉट हैव ऑल द वोकैबुलरी. व्हाट शुड आई डू? तो वहाँ पे एक और इंस्टीट्यूट था डोमिनो का, कराची का, बहुत बड़ा, जिसका नाम था एंग्लोफाइल. Hmm. यू माइट हैव हर्ड द नेम, राइट? Hmm. या जो कराची में जो लोग सुनेंगे पॉडकास्ट, दे वुड नो कि एंग्लोफाइल हैज अ बिग नेम. तो एंग्लोफाइल के 2 ओनर्स थे, एक था नदीम मुर्तज़ा और एक शम्स. तो सर शम्स ने बाद में सेपरेट हो गया. उन्होंने शम्स एंग्लोफाइल कर लिया और एक जो था नदीम मुर्तज़ा एंग्लोफाइल, 2 डिफरेंट हो गए थे. तो आई वेंट टू सर नदीम मुर्तज़ा एंग्लोफाइल. वो डोमिनो के साथ ही गली में
सेम बोर्ड पे था, उन्होंने हमें एडमिशन दिया, वी वेंट देयर। लेकिन क्लास में स्टूडेंट्स, क्योंकि एक फ्रेश बच्चे होते हैं और एक होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी सीखा हुआ था, तो हम वी ट्राइड टू बी एफिशिएंट। उन्होंने कहा जी जाओ। आफ्टर 10 days दे रियलाइज कि भाई नहीं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्पॉइल द क्लास। उन्होंने कहा आप जाएं जी, आपको हम नहीं पढ़ा सकते, यू ऑलरेडी लर्न। तो वी लेफ्ट फ्रॉम देयर। फिर एक दो और इंस्टीट्यूट थे, लीडिंग इंस्टीट्यूट के नाम से एक था, तो मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे क्या होता था, इनका एक अल्फ्रेस्को होता था जहाँ पे आप ऊपर जाके अपस्टेयर्स बैठ जाएंगे, जिन लोगों ने क्लासेस ले ली हैं बच्चे बैठे होते हैं, एंड दे कैन लर्न एंड स्पीक टू ईच अदर। देयर वाज अ काइंड ऑफ इंग्लिश लर्निंग एनवायरनमेंट। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाके हम बैठ जाते थे ऐसे ही, लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, हमसे बातें करना शुरू कर दी। उनको लगता था ये अच्छी इंग्लिश बोला, तो दो चार लोग और आके मिलके बैठ जाते थे। सही है, तो वो पूछना शुरू कर देते थे, बताएं जी इसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कैसे होता है, आपने इम्प्रूव कैसे किया। यही हमारे अंदर भी था। Okay. मैं कराची यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ किसी दोस्त के साथ, वहाँ पे हमें 2-3 सोमालियन मिल गया, सोमालियन इंग्लिश बोल रहे हैं। तो बोलते थे यार, इज इट योर फर्स्ट लैंग्वेज? नो, वी लर्नड इट मैन, so how could you be so perfect in English? तो कहते थे, I remember the sentence that guy replied to me and Kamran, क्योंकि कामरान कराची यूनिवर्सिटी में जॉब करता था। तो कामरान ने जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखी तो उसने इंटरमीडिएट किया प्राइवेटली, फिर उसने प्राइवेटली बीकॉम किया, फिर उसने मैथ्स कॉम में एडमिशन लिया। नो माशाल्लाह, कामरान इज अ 16th or 17th ग्रेड ऑफिसर इन कराची यूनिवर्सिटी। जो कामरान हमने साथ में Yes, yes. राइट नाउ ही इज माशाल्लाह 16, I think 17 ग्रेड ऑफिसर इन कराची यूनिवर्सिटी, जबरदस्त। और ही इज माशाल्लाह डूइंग रियली रियली वेल। मेरा जब ऑफिस का इवेंट हुआ था तो उसमें मैंने उसको बुलाया था स्पेशली कराची से, मैंने कहा नहीं आप आए और यू हैव टू बी देयर। तो क्या हुआ कि सब कुछ चल रहा है, हमने इंग्लिश के ऊपर फुली फोकस रखा हुआ था। डोमिनो आ गया, पढ़ाना शुरू कर दिया। डोमिनो ने इनिशियली मुझे 4 घंटे के लिए हायर किया विद द माइंडसेट कि भाई 4 घंटे से ज़्यादा टीचर एनर्जी दे नहीं सकता। एग्जैक्टली। बट आई वाज सुपर एक्साइटेड कि नहीं, डोमिनो में पढ़ाना और 4 घंटे तो मज़ा नहीं है, आई विल बी टीचिंग मोर। तो आई वाज सुपर एक्टिव। तो मेरे स्टूडेंट्स हमेशा से कहते थे कि हमें सरनेम की क्लास चाहिए, तो उन्होंने कहा 4 से 5 घंटे कर दो। इनिशियली उन्होंने बहुत लाइट सा लिया, ठीक है यार टीचर है, मेहनत कर रहा है बच्चों के साथ, तो बच्चे भी लाइक कर रहे हैं तो 1 घंटा और देते। उन्होंने 5 घंटे दिए, फिर 6 घंटे, फिर 7 घंटे, फिर 8 घंटे। देयर वाज अ टाइम कि मैंने MBA बीच में छोड़ा और मैं फुल टाइम टीचर हो गया। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मैं कौन से सेमेस्टर में छोड़ा आपने? लास्ट सेमेस्टर। ओके। सही है। क्या मतलब क्या बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था? तो माइंड ये था कि भाई कुछ खुद से करना है, राइट। एजुकेशन व्हाटएवर आई वाज बीइंग टॉट इन द यूनिवर्सिटी दैट वाज ओके, बट मुझे लगता था कि सब लोग खाना पूरी कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनको पता है 3 घंटे क्रेडिट आवर्स गुजारने हैं। स्टूडेंट भी यही कर रहे हैं और टीचर्स भी यही कर रहे हैं। लाइक उस मोमेंट पे ऑब्वियसली लाइफ के उस मोमेंट में जब आपकी डिग्री ऑलमोस्ट MBA ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट वहाँ पे एक साइड पे आप जॉब कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली एक जर्नी तो रही है आपकी यूनिवर्सिटी की। क्या ऐसा पिंचिंग एलिमेंट था जिसने आपको इतना चेंज कर दिया था कि यू लाइक वांट टू लीव द यूनिवर्सिटी एट द एंड ऑफ योर डिग्री? वो क्या ऐसा मेजर एलिमेंट था? देखिए, मेजर एलिमेंट यही था कि आई वाज थिंकिंग कि मुझे कुछ ऐसा नहीं सिखाया जा रहा। क्या पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे थे? ऑब्वियसली नहीं, पैसे क्या आ रहे थे आपको? 2001 घंटे मिल रहे हैं, 8 घंटे के 16,000 मिल रहे हैं। यस। ठीक है, 10 घंटे के 20,000। ठीक है, और यही हुआ। मैं 11 घंटे पढ़ाने लगा तो मुझे 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22,000 मिलते थे। सुबह 8 बजे मैं जाता था, पहली क्लास होती थी 8 to 11 और लास्ट क्लास होती थी रात को 8 से 11। तो मैं सुबह 8 बजे जाता था, रात को 11 बजे ताले लगा के आता था। सही है। पिंच ये कर रहा था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे उसका फायदा नहीं होना। अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे स्टार्ट से स्क्रैच से फिर से सीखना पड़ेगा। अगर मैं बैंक में जॉब करता हूँ या मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ तो मुझे फिर से सीखना पड़ेगा। मुझे बुक्स ने, किताबों में जो सिखाया गया, देयर इज नथिंग प्रैक्टिकल इन इट। तो इससे बेहतर है कि एक चीज मुझे आ भी गई है, टीचिंग पैशन भी है, तो उसको प्रोफेशन बना दें। और वो होते थे ना टीचर्स, आपको एग्जाम्पल देते थे, देखो जो आपका पैशन है वही प्रोफेशन बन जाता था, जो बिकम सक्सेसफुल। तो मुझे लगा कि मेरा टीचिंग पैशन भी है, प्रोफेशन भी बना लेते हैं, तो थिंग्स विल गो रियली फाइन। तो मैंने घर पे नहीं बताया, भाई को मैंने बताया कि भाई MBA कंप्लीट हो गया। सही है। और मैंने PNG में जॉब, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ओके। कितनी सैलरी? मैंने 25,000। ओके। उस टाइम पे मैं टीचिंग में 30 कमा रहा था, 5,000 पॉकेट में रखेंगे, 25,000। अच्छा, तो इनिशियली मैं भाई को कैश जाके देता था 25,000 ना, स्कूल इंस्टीट्यूट वाले आपको कैश देते हैं, तो मैं कैश ले जाता था, एक एनवलप में जाके देता, भाई ये ले मेरी सैलरी। ओके। भाई बस लाइक यार तुम्हारी सैलरी, मैंने कहा अभी बैंक अकाउंट नहीं खुला। मैंने कैश में क्यों आती है यार, वो तो चेक देते हैं। मैंने नहीं, हमें कैश में दे। अच्छा, कुछ दिन बाद उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, तुम्हारी सैलरी अभी तक कैश में आ जा रही है। मैंने कहा यार हमारा पता नहीं डिपार्टमेंट, उन्होंने
ऐसे ही रखा हुआ है डॉग बेसिस के ऊपर, पता नहीं परमानेंट करते भी हैं नहीं करते, लेकिन सैलरी उन्होंने 30,000 कर दी पड़ ओके आई हैड मोर क्लासेस। फिर एडवांस क्लास अगर आपकी मिलती है ना, व्हेन यू बिकम अ बेटर टीचर, तो आपके जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं जी हमें सर नईम से एडवांस क्लास लेनी है, तो उसमें फीस होती थी 3,000 रुपये महीने की। आपकी 1,000 रुपये पर मंथ है रेगुलर में, लेकिन एडवांस में 3,000 पर मंथ है। तो ओके जब आपके 20 स्टूडेंट हो जाते हैं तो आप इंस्टीट्यूट को स्टार्ट कमा के दे रहे हो, आपको दो नहीं, अब आपको वो देंगे 5,000 रुपये उस 1 घंटे के। तो इस तरह 1-2 मेरी एडवांस की क्लासेस बन गई, तो मेरी सैलरी बढ़ गई। तो मैंने भाई को बता दिया कि मेरी सैलरी बढ़ गई है। अब क्या हुआ कि मेरे कुछ दोस्तों से मेरा नोक झोंक हो जाती है, फड्डा हो गया। एक मेरे दोस्त ने जाके भाई को बता दिया, तो भाई इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है ओके वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी, तो टीचर है। और माय ब्रदर वाज वेरी एंग्री, जी क्या पता चला मुझे। मैंने कहा भाई क्या करें, बस यही है, आई एम अ टीचर यस बिकॉज आई लाइक इट। उन्होंने कहा, मुझे बहुत समझाया कि देखो यार टीचिंग में क्या फ्यूचर है, वेस्ट कर रहे हो अपने आप को ये वो। मैंने कहा देखिए मैं इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, जो स्कूल खोलूंगा, देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर इन दैट। मैंने पूरे एक्सपोजर बताया कि फलां बंदा था उसने इंस्टीट्यूट बनाया। मैक कॉलेज को देखें, 3 दोस्त थे, मुकर्रम अब्बास कामरान कराची का वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, मैक कॉलेज के नाम से। तो देवर 3 फ्रेंड्स, एक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, एक फिजिक्स पढ़ाते थे और एक मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। उन तीनों ने मिलकर MA सर मुकर्रम अब्बास एंड कामरान, उन्होंने मैक कॉलेज के नाम से एक इंस्टीट्यूट बनाया। ओके अब उनका स्कूल भी है एंड दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ रुपीस पर मंथ स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कहा उनको देख लें, 1-2 और एग्जांपल्स चाहिए उनको कि देखें जी बहुत फ्यूचर है इसमें। Okay. यार जाओ जो करना है करो, ठीक है। बट स्किल्स भी काफी एनहांस हो गए। कन्विंसिंग स्किल्स वर देयर, बट ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स का माइंडसेट यही होता है कि भाई इसके ऊपर पढ़ाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ही हैज टू बी CSS और समवन वेयर वी कुड टेक द प्राइड कि भाई ये हमारा बच्चा है। Right? हाँ। उनको लगता है टीचिंग में कोई प्राइड नहीं है, कि स्कूल खोल लेगा तो क्या करेगा अपने लिए कुछ, मतलब हमें कोई फायदा नहीं है। अगर हूटर वाली गाड़ी अगर होगी तुम्हारी तो हमें एक रिस्पेक्ट मिलेगी। प्रोटोकॉल तुम्हारे ख्वाब तो तुमने चकना चूर कर दिए। हम तो सोचते थे कि तुम CSS करोगे या कुछ बनोगे, मतलब तुम फारे निकले हो भाई, तुम किसी काम के नहीं हो। अच्छा सर, यहाँ I पे used to get those remarks. दो डायलेमास की मैं बात करूँगा। नंबर 1, एक तो आपने जिक्र किया कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ी, Right. कि वहाँ के ऑब्वियसली आपको जो वहाँ पे करिकुलम पढ़ाया जा रहा था वो आपको अप टू डेट नहीं, यानी लाइफ के साथ आपके आगे जर्नी के साथ जो आपने बिजनेस सपोज Align करना नहीं था, था अलाइन नहीं था उसके साथ। क्या ये एक मेजर रीज़न थी? ठीक है, 1 थिंग। एंड नंबर 2, ऑब्वियसली आपने जिक्र किया कि आप जो बाकी आप इंस्टीट्यूट के साथ अटैच रहे हैं पढ़ाने वाले, जो इंग्लिश जहाँ से आप सीख रहे थे, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक मेजर डिफरेंस मुझे बताएं कि थे तो दोनों इंस्टीट्यूट ही। जी देखें, इंस्टीट्यूट दोनों ही थे, लेकिन डिफरेंस ये था कि एक में आपको लाइफ स्किल्स सिखाया जा रहा है, यू गेटिंग एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। उसके बाद आप जहाँ भी जाओगे आपको लैंग्वेज जरूरत पड़ेगी। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं जॉब के लिए, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको लोगों से बात करना है। आप बात जितना नाइस वे में करेंगे आपको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। और बैक इन द डेज अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो लोग आपको वैसे ही इज्जत की निगाह से देखते थे। डिग्री आपकी सेकेंडरी हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि भाई डिग्रीज का फ़ायदा ही नहीं है। जब हमारे पास लोग आते थे MBA एग्जीक्यूटिव, आपको होता है ना कभी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज में आपको एग्जीक्यूटिव्स भी दे देते हैं कि एग्जीक्यूटिव को कोर्स ऑफर कर दिया कि आप आ जाएं, तो प्रोफेशनल्स आते थे। अब वो प्रोफेशनल्स जिस तरह आके प्रेजेंटेशन देते थे, हमें लगता था कि भाई बस ठीक है, अल्लाह ने करम ही किया है कि हमने पहले इंग्लिश सीखी ना। यहाँ पे बिल्कुल पतला हाल। डबल MBAs लोग आते थे, डबल मास्टर्स, किसी ने कोई डॉक्टर्स हैं, लेकिन लोगों को इवन के डोमिनो में जब मैं स्टूडेंट टीचर था तो मेरे पास कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो कि प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, वो सारे मेरे स्टूडेंट्स थे। सही है, उनको हम सिखाते थे, उनको बात करना नहीं आ रही होती। तो मुझे लगा कि इट्स बेटर, मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो और बढ़ता गया टीचिंग में और इंग्लिश में, जब मैंने लोगों को देखा कि सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने आगे लैंग्वेज सीखनी है। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स हमें उस जमाने में प्रेजेंटेशन तक के ऊपर कोई काम नहीं होता था। इंग्लिश अगर एज अ कोर्स आपको पढ़ाया जाता था तब कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाए जाते थे, लेकिन वो फॉर द सेक ऑफ जस्ट क्रेडिट आवर्स पूरे करने थे और पासिंग मार्क्स लो और आगे बढ़ जाओ। कोई प्रैक्टिकलिटी के ऊपर कोई काम नहीं होता था। ओके, दूसरा डिलेमा कि हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे, वो उनको ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। ऑब्वियसली यही हमेशा कहा जाता है कि जिसको कहीं जॉब नहीं मिल रही वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर लग गए। ये बहुत बड़ा डिलेमा है कि जिस पर्सन ने आपकी लाइफ को चेंज करना है, ऑब्वियसली आपकी भी लाइफ को चेंज किया है। आपके साथ जो टीचर अटैच थे, आप स्टिल उनको मेंटर मानते होंगे क्योंकि उन्होंने आपको बहुत चेंज किया था इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन प्रॉब्लम टीचर्स का नहीं है, आई डोंट ब्लेम द टीचर्स। द गेम ये है कि आपका जो करिकुलम डेवलप करने वाले लोग हैं, दे डोंट लिसन।
अभी रिसेंटली आपको बताएं कि आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे, हमारी जो यहाँ पे मेडिकल की डिग्री है यूएस में एक्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। हमारी नर्सेज जो हैं वहाँ पे जॉब ही नहीं कर सकती। वहाँ जाने के लिए आपको स्पेशली एक अलग कोर्स करना पड़ता है, फिर जाके आप एक्सेप्ट होते हैं। तो मेरे एक बंदे से बात हो रही थी इन द कांग्रेसमैन, लाइक ही सेड कि भाई मैं कांग्रेस में हूँ, आई कैन एक्चुअली हेल्प यू गेट सम काइंड ऑफ एक्सपोजर टू द यूएस मार्केट, और मैं आपको सिलेबस देता हूँ यूएस का, आप वो सिलेबस अगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवा दो तो आपके जो डॉक्टर्स हैं वो एक्सेप्टेड होंगे वहाँ पर भी। तो मैंने कुछ लोगों से मीटिंग्स की, कुछ बॉडी से मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सब सॉरी, वी आर शूटिंग विद मून, दैट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे करिकुलम चेंज करना तो समझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली अब 10 years तक एक ही करिकुलम चलता रहता है। आपके लिए मतलब आपको एक बंदा आपके लिए हेल्प करना चाह रहा है, आपके लोगों को एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हैं दे डोंट इवन वांट टू लिसन टू यू। Yes, आइडिया yes. सुनना ही गवारा नहीं करेंगे, Exactly. कहेंगे भाई ट्रैश इट, दैट्स इट। So that is a dilemma. Teachers are still there. They're excellent personalities. They're great. But problem कहाँ पर है कि उनको कुछ करने नहीं दिया जाता। I learned everything from my teachers. आपको एक्सपोजर मिला, मतलब हमारे मार्केटिंग के टीचर्स थे, जो आपके फाइनेंस के टीचर थे, कोई ना कोई एक बात आपको मजे की सिखा जाते हैं जो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं काम आती है। उनके लाइफ टाइम एक्सपोजर एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। मैंने हर टीचर से एक दो बातें सीखी। आई वॉज काइंड ऑफ स्टूडेंट के मैं कहता था यार हर टीचर से एक दो बातें सीख लूँ मेरे लिए बहुत है। मुझे कोर्स में नंबर्स मिले या ना मिले, मुझे टीचर के लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने को मिल जाए मेरे लिए बहुत है। एंड आई यूज्ड टू अटेंड क्लासेस दैट वे कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी इज्जत करनी है, उनकी बात सुननी है, जो उन्होंने ऑर्डर दिया उनको फॉलो करना है, दैट्स इट। मार्क्स वो देते हैं नहीं देते, या मैंने उस तरह से मार्क्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है नहीं करना, दैट इज सेकेंडरी थिंग। पहली बात यह है कि टीचर की इज्जत करनी है, उनसे कुछ ना कुछ जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखना है, एंड दैट्स ऑल आई लर्न। अच्छा, आपका फुल ऑन कह लें लर्निंग फोकस्ड अप्रोच रही है, ठीक है। और एग्जैक्टली फिर आपने टीचिंग की है, तो टीचिंग से आपने सीखी क्योंकि आपको लगा कि वो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखा रही है। एग्जैक्टली। तो जब आप इस अप्रोच से चल रहे थे कि इवन आपने लास्ट सेमेस्टर में आके आपने फुल टाइम टीचिंग कर ली, तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या शिफ्ट आया कि आपने टीचिंग छोड़? यस, ग्रेट क्वेश्चन। तो हुआ क्या कि व्हाइल आई वाज इन डोमिनो, मैंने इस डोमिनो के साथ साथ मैंने कहा थोड़ा सा इनकम बढ़ानी है। अब घर पे पता चल गया है तो अब टीचर तो फुल टाइम हो जाओ, तो मैंने कहा अब टीचिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। तो मैंने मॉर्निंग में एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और इवनिंग में 8 घंटे सुबह 6 घंटे स्कूल और 8 घंटे डोमिनो, तो 14 घंटे टीचिंग। ओके, टीचिंग में अभी स्टिल एक्सेल कर रहे हैं? यस, एक्सेल कर रहा हूँ। स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। द थिंग आई हेटेड अबाउट स्कूल टीचिंग वाज कॉपी चेकिंग। अब आपने 6 घंटे पढ़ा तो दिया, उसके बाद आपको कोई 150 कॉपीज आ जाएंगी, अब चेक करके जाएंगे प्रिंसिपल, वरना इस तरह देखेगी ना कि आप कहेंगे Okay. भाई या तो मैं इधर ही दफन हो जाऊं या ये कॉपी चेक करके जाऊं, ओके, राइट। तो बहुत ज्यादा अरसा नहीं टिक पाया मैं स्कूल में, 6 महीने में मैंने छोड़ दिया। ओके। ठीक है, एंड इट वाज लाइक प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल? ओके। एक और सवाल है यहाँ पे मेरा, किसी से आप स्कूल में भी टीचिंग करने गए एंड यू weren't really satisfied with the कह लें कि जो एक सिस्टम चलता आ रहा था पढ़ाने का, तो did you introduce something new? I wanted to introduce something new. I told them that I'm an English language teacher. मुझसे क्या कॉपी चेकिंग करवा रहे हैं, मुझे लोगों को बुलवाएं बच्चे, आई विल ट्रेन देम टू स्पीक इंग्लिश। अब उनको मैंने नेंसेस लिखवाने से कोई फायदा नहीं पड़ना, उनकी बुक्स को पढ़ने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, उनकी कॉपी चेक करने से मुझे फायदा नहीं होगा। गिव मी टाइम विद देम, आई विल टॉक टू देम, आई विल प्ले विद देम, आई विल मेक देम कन्वर्स इन इंग्लिश, एंड दैट इज समथिंग दैट इज गोना हेल्प देम इन द फ्यूचर। उन्होंने कहा नहीं जी हमारा सिस्टम है, अपने इसको फॉलो करना। कॉपी चेकिंग लाजमी हो गया। आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है तो बुलवाएं कम, लिखवाएं ज्यादा, ठीक है। बच्चे को आना चाहिए लिखना, यस, राइट, उसको टेंसेस पता होने चाहिए। मैंने कहा उस टेंसेस का क्या फायदा जो किताबों में पढ़े हुए हैं, राइट। तो आपको प्रैक्टिकलिटी तो लेकर आनी चाहिए ना, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच। उन्होंने कहा जी नो दैट्स नॉट हाउ वी वर्क, आपको हमारे फॉलो करना है। तो आई अल्टीमेटली लेफ्ट स्कूल टीचिंग। आफ्टर हाउ लॉन्ग? 6 महीने एक बैच गुजारा था, सही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि अब एक काम करते हैं, एमबीए तो किया हुआ है, बीएड अगर मैं कर लेता हूँ तो टीचिंग की सर्टिफिकेशन हो जाएगी, और अगर स्कूल वगैरह बनाता हूँ तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। आई गॉट एडमिशन इन बीएड, हमदर्द यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमएड में एडमिशन लिया, और एमएड में जब मैंने एडमिशन ले लिया और साथ में मैं टीचिंग भी कर रहा था, तो अब उस दौरान घर वालों ने सोचा कि यार इसकी शादी करनी चाहिए, सही है। तो अम्मा 2-3 जगह उन्होंने बात की रिश्ते की, तो उन्होंने बोला भाई बच्चा क्या कहता है, टीचर है। बोला वो तो सही है लेकिन करता क्या है, ओके, सही है, मतलब दैट्स नॉट द फ्यूचर। तो आई वाज लाइक अच्छा ये भी होता है। तो खैर बहुत ज्यादा पुशबैक मिला, तो मैंने क्या किया कि अच्छा लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सीडेंटली हो रही होती हैं। तो वो जो कामरान हैं मेरे दोस्त उनके एक भांजे थे खालिद साहब, तो खालिद ने एकदम मुझे कॉल की, नहीं भाई यार आप तो इंग्लिश पढ़ाते रहे हैं, मेरा एक
कंपनी है डिफेंस में, वहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल आई है, तो वो अमेरिकन कंपनी है। तो मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मेरे पास आया, उसको मैंने इंटरव्यू टिप्स दी थोड़ी सी, क्योंकि हमारे अंदर टीचिंग क्वालिटीज तो फूट फूट के भरी हुई थी ना, तो हमने उसको टिप्स दी एंड ही वेंट इन फॉर द इंटरव्यू। अब वो इंटरव्यू में गया, आप फेल हो गए इंटरव्यू में, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं बोली और आप पहले दिन जाके यस एकदम से इंटरव्यू में चलो। बोलेंगे तो यू वोंट बी एबल टू डू दैट। तो ही गॉट फेल्ड। उसने वहाँ से खड़ा होकर मुझे कॉल किया, नहीं भाई मुझे तो इन्होंने फेल कर दिया है, बट आई थिंक आपको यहाँ आना चाहिए। अच्छा, मैंने सोचा कि यार टीचिंग से वैसे ही फेड अप हूँ, एमएड साथ में चल रहा है, देखते हैं क्या करते हैं। तो आई वेंट देयर 2012, ओके 2012। तो डिफेंस में कंपनी का नाम था मेडिकल मैनेजमेंट, आई वाज माय फर्स्ट कंपनी। तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और इनिशियल इंटरव्यू एचआर ने लिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है, यू आर क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू। ओके कंपनी किस तरह की थी? इट वाज यूएस बेस्ड कंपनी। हम्म। उसमें बेसिकली होता क्या था कि इट वाज अ जॉब ऑफ अ नेगोशिएटर। आपने एज अ पार्ट ऑफ द कंपनी एम्प्लॉई, आपको कुछ पोर्टफोलियो दिया जाएगा डॉक्टर्स के बिल्स का। उन डॉक्टर्स के बिल्स को आपने इंश्योरेंस कंपनीज को कॉल करके नेगोशिएट करना है। जैसे ओके आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट हैं, आप इनके पास गए, आपने सर्विसेज ली, आपने बिल यहाँ भेज दिया, क्योंकि आई एम योर रिप्रेजेंटेटिव और सामने इंश्योरेंस कंपनी है। ओके लाइक उन्होंने और पूरा Outsource अपना किया। सेटअप आउटसोर्स किया होता है इन पाकिस्तान। यूएस के डॉक्टर्स ने आउटसोर्स किया होता था पाकिस्तानियों को। हमारा काम है इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर। तो मैं कहूंगा माय नेम इज नईम, आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर लोधी। There was a patient, Nurulan. She came for a checkup. She got these services from her doctor, and the bill is for $2,000. And I want to see if you can pay that today. ओके अब इंश्योरेंस कंपनी बोले कि why should I pay you? तो उसमें मल्टीपल सिनेरियोज होते थे कि आपने नेगोशिएट करना है। तो पहले ट्रेनिंग होती थी। तो एंड कितनी स्ट्रांग थी उस टाइम ये कंपनी, लाइक ऑन अ by रैंकिंग that time बेस? they have 200 employees. ओके One of the best company in Karachi उस टाइम पे। अब पहला इंटरव्यू उन्होंने कहा, सेकंड इंटरव्यू आपका होगा, हमारे जो सीईओ हैं, हर नेम इज नगमा हनीफ, शी इज इन द यूएस, वो कैलिफोर्निया में होती हैं, वो आपका स्काइप पे ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, आप हमारे ऑफिस आ जाए शाम। ओके एंड व्हाट इज द ईयर? 2012। 2012 2012 में रात को, हमने दूसरी बात है नाइट जॉब होगी, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। मैंने कहा कोई Okay. बात नहीं, रात से 8 सुबह 5 वाला मसला नहीं है, पैसे अच्छे देंगे तो कर लेंगे। चलिए, इसकी पहली आदत होगी। यस, वो तो आदत थी हमें। तो 8 से 5 की जॉब रात की, माइंड बना के चले गए भाई हमें जॉब मिल जाएगी। तो आई वेंट इनटू द इंटरव्यू। ऐसे मैं सामने बैठा, स्काइप के ऊपर उन्होंने लैपटॉप खोला और हम कैमरा पे थे, लेकिन सामने से मैम की तस्वीर को नजर नहीं आ रही थी, वो अपने ही शशकों में थी। ओके उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम नईम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने कहा माय नेम इज नईम अब्बास, आई हैव डन माय एमबीए एंड currently teaching and doing my B.Ed as well. तो उसने कहा how much do you currently make? मैंने कहा I make around 40,000 a month. And she was like, then continue doing what you're doing. I was like, Okay. what the hell? This is an American company, ये तो डॉलर्स में कमाते हैं, इनको 40,000, मतलब या तो इनको लग रहा है मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूँ। I was like, यस विशफुल थिंकिंग होती है ना कि आपको लग तो ये तो लग नहीं रहा था कि आपकी वर्थ कम है। तो उन्होंने जब कहा 40 सुना तो उन्होंने कहा कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आई वाज लाइक ओके, मे बी इनका पे स्केल इतना नहीं है, कुछ और Budget नहीं होगा, budget नहीं obviously. होगा। तो जब मैं उठने लगा तो उन्होंने कहा बट वी विल ऑफर यू 18,000 रुपीज अ मंथ। अब यहाँ पे लिटरली आई वाज शिवरिंग एंड बस मेरे आंसू नहीं आए। मैंने कहा यार ये क्या मतलब, एक बंदे ने मास्टर्स किया हुआ है, उसका टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो एमएड कर रहा है और उसको 18,000 ऑफर कर रहे हैं ये लोग। एक सॉर्ट ऑफ पूरी डीमोटिवेशन वाला ना। इट वाज वेरी डिमोटिवेटिंग। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा, नहीं यार ठीक है, ऑलराइट थैंक यू। मैं उठने लगा तो उन्होंने कहा बट विल बी एबल टू ट्रेन यू टू अर्न 100,000 रुपीज अ मंथ इफ यू स्टे विद अस ओके and want to learn. And that caught my attention. I stayed there for a while and I questioned myself, ये कोई नैनो सेकंड में ये काम हो रहा है सारा। मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि अगर मैं जाता हूँ टीचिंग में दोबारा, मैं टीचिंग कंटिन्यू करता हूँ तो मैं क्या लाख पे पहुंचूंगा? तो जवाब आया नहीं, जब पहुंचोगे तो बहुत देर से। तो मैंने वहीं रुका, मैं टर्न हुआ, मैंने कहा मैम कुड यू प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग वुड यू टेक मी टू गेट टू 100,000 रुपीज अ मंथ इफ आई joined you guys? ओके And she was like 6 months, because we have examples. There are people, they are making 100,000 rupees a month and it's been less than 6 months. And I was like, then if that is the thing, I'm ready to join. I won't even ask you for 20. Give me 18, I'm coming. जबरदस्त। So they hired me at 18,000 rupees a month salary. और बाद में मुझे पता चला कि मेरे बैच में 22 लोग थे, सारे 22,000 पे आए थे, 21,000 पे आए थे। I was the only guy that was hired at 18,000। ठीक है। एक छोटी बात मैं पूछना चाहूंगी, इस दौरान फैमिली की तरफ से क्या फीडबैक? फैमिली को कुछ नहीं पता। नहीं बताया नहीं। फैमिली को ये पता था कि हाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो गई है, बाद में सैलरी बढ़ जाएगी, अभी तो ट्रेनिंग है।
ठीक। एग्जैक्ट सैलरी बताई थी आपने फ्रॉम फ्रॉम नहीं बताई, क्योंकि मैं तो टीचिंग से 40 कमा रहा था, Yes, exactly. तो वो तो मार देते मुझे कि भाई क्या कर रहे हो तुम, हमेशा तुमने वर्स्ट डिसीजन ही लेना है. कैलकुलेटेड रिस्क था ये. It was not calculated risk. It was a kind of risk just for the sake of taking. देखना चाहिए। Let's see how that goes. एक मल्टीनेशनल कंपनी है, फिर लोगों को मैंने बातें की उनसे इंटरव्यू के बाद, तो उन्होंने कहा जी कंपनी बहुत अच्छी है, यहाँ पे 1-1 लाख 2-2 लाख लोग कमाते हैं इंसेंटिव्स मिला के, सैलरी कम है लेकिन अगर आप अच्छा करते हो ऑन द जॉब तो आपको इंसेंटिव अच्छा मिलता है, 1-1 लाख इंसेंटिव बन जाता है. और अगर आप ग्रो करते हो तो डिफरेंट स्टेजेस हैं. आप मैं हायर हुआ था एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव BDE 1. यस. तो उनके रोल थे BD 1, BD 2, BD 3. तो अगर आप 1 है तो आपकी सैलरी 18 से 22,000 के बीच में है, अगर आप 2 हैं तो आपकी सैलरी 30,000 होगी, और आप 3 बन जाते आपकी बेसिक 37 हो जाएगी. बट दैट इज द टॉप. 37 के बाद सैलरी नहीं बढ़ेगी, फिर आपको पोर्टफोलियो असाइन होता जाएगा, आप ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को ला के देते जाएं और आपका रेवेन्यू, आपका इनकम बढ़ता जाएगा. आपका इनिशियली क्या था जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे क्या थी? जॉब डिस्क्रिप्शन ये थी कि हमें उन्होंने एक पोर्टफोलियो असाइन किया, आपको 100 फाइलें दे दी डॉक्टर्स की, उनके ऊपर पेशेंट नेम लिखा हुआ है, बिल्स लिखे हुए हैं, सर्विसेज लिखे हुए हैं, एक्सरे है, MRI है, क्या है, आपने उस पोर्टफोलियो को देखना है. देखने के बाद एक फ़ोन नंबर लिखा होगा इंश्योरेंस कंपनी का, उस कंपनी को कॉल करनी है, इंश्योरेंस से पूछना है भाई इस क्लेम के ऊपर बंदा कौन है जो क्लेम रिजॉल्व करेगा, उसको कहते हैं एडजस्टर. आपने एडजस्टर को कॉल करनी है, उसको कॉल करके अपना इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन में आपने अपना रियल नेम नहीं बताना, आपने सूडो यूज़ करना है. ओके. तो मेरा सूडो था डीन फ्लैम, मुझे अभी भी वहाँ के लोग डीन के नाम से बुलाते हैं. तो मैं कहता हेलो दिस इज डीन फ्रॉम MLM एंड आई वांट टू नेगोशिएट ऑन दिस फाइल. मेरा पेशेंट नेम बताओ, बिल बताओ, क्या चाहिए, व्हाट्स योर ऑफर, व्हाट्स योर डिमांड, वो होता था. It was a negotiation job and I loved it, and I think that was another turning point in my career कि I'm getting the exposure to negotiate with people who are professionals, क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी रिप्रेजेंटेटिव हैं. Yeah, it was a very very good thing for me for learning, क्योंकि अब मैंने उनसे जब negotiate करना बात करना, I have to be at their level. Yes. Right? तो अच्छा ड्यूरिंग ट्रेनिंग आई एंजॉयड अ लॉट, क्योंकि मैम इनिशियली started training us herself, उसके बाद हमारे ट्रेनिंग मैनेजर थे, उन्होंने भी हमें ट्रेन किया. तो the very first day she told us कि Naeem, remember when you're talking on the phone, people don't look at you, they don't see you, so your voice is your face. Yes. Exactly. Keep in mind. Now that is where I thought कि अब मजा आएगा, क्योंकि जो मैंने इंग्लिश सीखी है अब यहाँ पे एक्सरसाइज होगी. अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि when you speak to Americans, they have totally different accent. Accent. Yeah. अब आपकी लिस्टिंग स्किल्स नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपने सारे देसी सुने हैं. तो इनिशियली मुझे वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज हुआ, बट ओवरऑल आई वाज ओके, आई वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. उसका मैंने हल क्या निकाला कि मैं रिकॉर्डिंग्स अपनी कॉल रिकॉर्ड करता था. अगर मुझे कोई बात समझ में नहीं आई जो कि फ्लो में वो बोल गए, तो मैं उन रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुन के उसको पक्का करता था, सुन के, और फिर नेक्स्ट टाइम मेरे लिए आसान होता था किसी भी गोरे को समझना. तो दैट्स हाउ स्टार्टेड माय करियर. Is there any probation period जो यस, 3 months का प्रोबेशन होता है. 1 महीना पूरा हमारी ट्रेनिंग थी कि ट्रेनिंग रूम में आप बैठेंगे, इस तरह का एक रूम था, उसमें 10 लोग 20 लोग हम बैठ गए, पूरा 1 महीना आपकी हार्डकोर ट्रेनिंग, mock calls वगैरह? मॉक कॉल्स वगैरह. पहले आपको पूरा प्रोडक्ट नॉलेज दिया, उसके बाद मॉक कॉल्स के सेशंस हुए, और उसमें हम जब फ्लोर पे आए थे 22 में से 7 लोग फ्लोर पे आए थे. 15 लोग okay. कुछ छोड़ गए थे क्योंकि नाइट जॉब में जागना बड़ा मसला था, बिल्कुल. कुछ नाइट के छोड़ Exactly. गए. उस टाइम पे बैक इन 2012 इतना ज्यादा कॉल सेंटर्स का या नाइट जॉब्स का इतना ज्यादा रुझान नहीं था उस साइड. Yes. राइट. तो इस तरह से हमने उसको कंटिन्यू किया. 7 लोगों में से आखिर में मैं अकेला बच गया कुछ 6 महीने बाद. आई वाज द ओनली पर्सन ऑन फ्लोर. सारे 22 लोग जो फ्लोर पे 7 है वो भी छोड़ के चले गए. उसके बाद कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं आपको इस टेन्योर को थोड़ा सा खींचूंगा. अब क्या हुआ कि आई स्टार्टेड वर्किंग विद MLM एज अ नेगोशिएटर in 2012. 2013 में I was the BD3, because within the 6 months. वो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप 6 महीने में 1 लाख पहुंचेंगे, तो मैं 6 महीने के अंदर BD3 बन गया. तो मेरी सैलरी 18,000 से होगी 37,000, which was a good jump कि आपकी सैलरी डबल हो गई है. और प्लस मुझे इंसेंटिव आना शुरू हो गया 60-65,000 रुपए. तो आप making 100,000 प्लस. Wow. तो that was a milestone achieved. It was back in 2013. 2013. अब जो है ना प्रॉब्लम क्या था कि आपको एक पॉइंट पे आके ना लाइफ में थोड़ी इंकरेजमेंट चाहिए होती है, अप्रिसिएशन चाहिए होती है, तो यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. अब लोगों के रिमार्क्स ये थे यार इस बंदे के अंदर मैनेजरियल क्वालिटीज नहीं है, ये बंदा कलेक्टर बहुत अच्छा है, ही कैन नेगोशिएट रियली वेल, बट मैनेजरियल क्वालिटी इज अ डिफरेंट थिंग, ही डजंट हैव दोस. कहते तो कोई बात नहीं, हमें जरूरत ही नहीं मैनेजर बनने की, क्योंकि हमें पता है मैनेजर हमारा 80,000 कमा रहे हैं, हम लाख कमा रहे हैं, राइट. क्योंकि आपकी सेल्स जॉब में यही होता है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब. आपके मैनेजर कम कमाते हैं, आप अच्छे नेगोशिएटर हो, सेटलर हो तो आप ज्यादा सेल करते हो. तो हमने उसको लाइट लिया. उसके बाद क्या हुआ कि एक बार इंटरव्यूज में डायरेक्टली मैम ने हायर करने थे, हमने इंटरव्यू दे दिया.
13 लोगों में से हम ही सिलेक्ट हुए. आई बिकेम द मैनेजर. अब मेरे स्टैंडर्ड से when I became a manager तो I was very strict kind of person. मैं कहता था कि परफेक्शन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. तो मेरी टीम में लोग डरते थे आते हुए. ठीक है, मैनेजर बना. I कितने became पर्सन से आपके अंडर? 10 ओके. 10 लोगों की टीम मिलेगी, 10 को आप परफॉर्म करोगे, फिर आपको देखेंगे क्या करना है. तो जब मैं मैनेजर बना तो मैनेजर की सैलरी थी 40,000 और इंसेंटिव जो टीम करेगी उस पर कलेक्टिवली मिलता था. हमारी टीम प्रोड्यूस ही नहीं करती थी. हम 40,000 से 20,000 इंसेंटिव 60,000 पे आ गए. अकेले काम करते थे, लाख रुपए मिलते थे, लाख से ऊपर. अब टीम मैनेजर बन गए हैं, 10 लोगों की टीम है, टाई लगा के जाना है. पहले Yes. मर्जी से जाते थे. अब सैलरी बन रही है 60,000. तो आई वेंट टू द मैनेजमेंट का भाई ये तो नहीं चलेगा ऐसा. उन्होंने बोला बाकी 16 मैनेजर भी तो हैं ऑफिस में, उनको तो मसला नहीं, आपको क्यों मसला है? मैंने कहा बाकी पता नहीं क्या कमाते थे. मेरी तो सैलरी कम हो गई है, आई वांट टू ग्रो. तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये वो करते करते खैर मैंने कहा मैं रिजाइन कर दूंगा या मुझे. उन्होंने कहा जी ठीक है. एक पॉइंट पे दे सेड के ओके गो बैक टू कॉल्स. मैं दोबारा कॉल्स पे आ गया. मैनेजर से डिमोटिवेट होके उन्होंने मुझे डिमोट कर दिया. मैं दोबारा कॉल्स पे आ गया और जिस मंथ में कॉल्स पे आया उस महीने मेरा पे चेक बना 1,17,000 का. तो आई टोल्ड द मैनेजमेंट कि भाई ये देखें, दिस इज व्हाट माय स्किल सेट इज, दिस इज व्हाट आई डिजर्व एंड दिस इज व्हाट यू गाइस आर पेइंग मी. तो आई एम गोना रिजाइन. तो मैंने जब रिजाइन किया तो उन्होंने कहा जान छूटी इससे, जाने दो इसको. यही होता है. लास्ट डे था मेरा कंपनी में. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द ओनर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द यूएस, मिस्टर जाहिद हनीफ. और उन्होंने कहा कि नहीं कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर बस जा रहे हैं, जॉब हो गई है. कहाँ? मैंने कहा एग्जैक्ट. कितनी सैलरी? मैंने कहा 80,000. कहते अगर 80,000 मैं दे दूंगा. मैंने जा ही नहीं रहा. मैं तो जा इसलिए रहा हूँ Yes. कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही थी. अगर आप 80 देते तो मैं नहीं जा रहा. अगर मैंने कहा काम क्या करूंगा? बोला मैं बात बताऊंगा, तुम रुक रहे हो? मैंने कहा यस सर. कह रहे तो भाई पहले इन लोगों ने क्यों नहीं रोका? जितने मैनेजर्स बैठे हुए थे इन्होंने मुझे क्यों नहीं रोका? उन्होंने कहा भाई उनकी मर्जी है. आई वांट यू टू स्टे, तो स्टे. मैं रुक गया. दे मेक मी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. उस क्यूए डिपार्टमेंट मैंने कुछ अच्छा चलाया, बहुत अच्छा चलाया. उसके बाद उन्होंने मुझे इस्लामाबाद भेजा 2015 में. ओके. As I came as a regional manager. That was the first time I came to Islamabad. ओके, उससे पहले कभी आपका इस्लामाबाद में विजिट नहीं हुआ? इस्लामाबाद घूमने के लिए एक दफा आया था, वो जो लाहौर से मरी गए थे तो Okay. इस्लामाबाद से गुजरे. But that was the first time. 2015 में I came as a regional manager उस कंपनी का, जिसमें इनिशियली मुझे 18,000 पे हायर किया था. अब मैं उसका रीजनल मैनेजर था. उनके कराची और इस्लामाबाद में 3 ऑफिस थे और इस्लामाबाद का मैं रीजनल बन के आया. That was a privilege to me. एग्जैक्टली. Right? 3 से 6 महीने की परफॉर्मेंस उन्होंने देखी और उसके बाद एक कंपटीशन दिया कि जो बेटर करेगा हम उनको नेशनल कलेक्शन मैनेजर बना देंगे. दैट मींस कि वो बंदा हेड करेगा कराची और इस्लामाबाद को 300 लोगों की टीम. ओके, व्हाट वाज योर इनिशियल एक्सपीरियंस हियर इन इस्लामाबाद के? कराची के जितने आपके 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 अंडर लोग काम कर रहे थे, उनका एक उनके साथ एक वर्क एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद. बिल्कुल. मैं पहले दिन ही समझ गया था कि कराची और इस्लामाबाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वहाँ पे लोग जॉब करते हैं नीड के तौर पर, यहाँ जॉब करते हैं मर्जी से. तो यहाँ पे अगर मैं किसी को कहता था कि भाईजान आपने टाइम पे आना है और किसी से अगर गुस्से से बात कर लेनी है, उसने कल जॉब ही छोड़ देनी है, वो आएगा ही नहीं. क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो जॉब पैसे के लिए नहीं कर रहे, वो टाइम पास के लिए कर रहे होते हैं, शौक से करते हैं. शौक से करते हैं. तो यही वजह थी कि यहाँ पे कोई रीजनल मैनेजर चल नहीं पा रहा था. टीम डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी क्योंकि हर बंदा कहता था कराची से. अच्छा, रीजनल मैनेजर हमेशा कराची से बन के आता था और उसको आदत थी डंडा करने की, जैसे कराची में होता है कि गुस्से पे खड़ा कर दो इनको, छुट्टी नहीं देनी, आपने छुट्टी बंद कर देनी, भाई आपने टारगेट पूरे नहीं किया, बैठ जाओ इधर. वो चीज़ यहाँ पे नहीं यहाँ पे करेंगे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, रिजाइन कर देंगे. सही है. तो मैं आया, मैंने सबको दोस्त बनाया, मैंने मैनेजर से मीटिंग की, उनको बताया भाई देखें आई एम फ्रॉम कराची, मेरी फैमिली कराची में, मुझे यहाँ नहीं रहना, आई विल गो बैक टू कराची वन डे. सही है. तो मैं क्यों जाऊंगा जब यहाँ पे मैं कोई बैकअप तैयार कर लूंगा. तो अगर आप में से कोई रेडी है, वांट टू बिकम अ रीजनल मैनेजर, मैं आपको रीजनल बनाऊंगा, वापस चला जाऊंगा. मेरा घर कराची, मेरी फैमिली कराची, आई डोंट वांट टू स्टे हियर. लोगों ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा आया है. तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. विद इन 3 months मुझे उन्होंने प्रमोट कर दिया नेशनल मैनेजर. जो मैनेजर से मैंने प्रॉमिस किया था एक को मैंने उठा के बना दिया रीजनल मैनेजर. मियां मोहम्मद मोहसिन, ही इज रनिंग हिज ओन कंपनी नाउ. ओके. बारे में बताएंगे आपको इंशाल्लाह. तो उनको मैंने रीजनल बनाया, मैं कराची चला गया एज अ नेशनल मैनेजर. अब मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों को देख रहा हूँ. 3-4 महीने गुजरे. अब हमारे अंदर जस्तुजू आगे बढ़ने की, ग्रोथ की. तो आई वेंट टू माय सीईओ, मैंने कहा सर मुझे ग्रोथ चाहिए, मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, कंपनी ग्रो कर रही है, मैं 3 ऑफिस मैनेज कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 1,35,000 है, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी? उन्होंने कहा भाई तुम सैलरी देखो अपनी, पूरे एमएलएम में सबसे ज्यादा सैलरी तुम्हारी है. ओके. मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन क्या यही रहूंगा? उन्होंने बोला भाई तो यही है हमारा. तो आई वाज लाइक कि मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ? कह रहे कहाँ देखना है? मैंने कहा आपकी जगह पे. तो कह रहे हैं कि मतलब यू वांट टू बिकम द सीईओ? मैंने कहा यस. तो कह रहे मैं क्या करूंगा? मैंने कहा आप कुछ आगे करें. राइट. ओके. एंड ही वाज लाइक चलें फिर आप देख लें. मैंने कहा ओके. मतलब ही सेड कि नो, हमारे पास यही ग्रोथ है. तो आई वेंट आउट. अब तो दैट वाज द पिनिकल के जहाँ पे आप
उस कंपनी में पहुंच सकते थे, यस, आप वहाँ पे पहुंच चुके थे एट द सैलरी ऑफ 1,35,000। 1,35,000 2012 में आपने ज्वाइन किया कंपनी को 18,000 पे, यस, 18 से आप 135 पे 5 चले गए। years. अब आपका उस कंपनी में ग्लास सीलिंग हो गया, उससे ऊपर आप नहीं जा आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years। परफेक्ट। अब 5 साल में जब आप इतनी मेहनत करके एक जगह पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर डर होता है, आप कहते हो कि यार छोड़ूंगा क्या करूंगा, लेकिन मेरे अंदर ये था कि नहीं आगे बढ़ना है। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके एक कंपनी में इंटरव्यू दे दिया। अगेन एग्जैक्ट जिसने पहले हायर किया था 80,000 पे उन्होंने रिटेन कर लिया, अब दोबारा एग्जैक्ट किया। एग्जैक्ट से पहला इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, इंटरव्यू देके मैं वापस, उन्होंने ऑफर अभी तक कुछ नहीं की मुझे। वापस आया हूँ, नेक्स्ट डे मुझे सीईओ साहब ने बुलाया, उन्होंने बोला आप एग्जैक्ट गए थे। यार ये तो अलादीन का चराग है, इसके पास पता चल गया कैसे पता चला? तो ही वाज लाइक कि आप एग्जैक्ट गए थे। उन्होंने कहा यस, कह रहे हैं कि आपने सोच लिया है कि आप मूव करेंगे या आप अपनी वर्थ चेक करने गए थे। मैंने कहा सर आप जैसी कंपनी से 1.35 लेके नेशनल कलेक्शन मैनेजर बैठा हूँ, इसका मतलब वर्थ तो मेरी है। यस। आई वाज प्रीटी ब्लंट। मैंने कहा मैंने सोच लिया मूव आउट होने का। उन्होंने कहा ठीक है जाए। अब मैं अपने डेस्क पे गया हूँ, मैंने अपने डे फिनिश किया, सुबह 5 बजे छुट्टी होती थी, मैं घर चला गया, वैन आई बैठा घर गया। सुबह 8 बजे मुझे एचआर से कॉल आती है 9 बजे के टाइम पे। फराज साहब हमारे एचआर मैनेजर थे, उन्होंने कहा जी नईम साहब यू आर टर्मिनेटेड। मैंने कहा हैं क्या हुआ? मैंने भाई इट्स एन इंटेग्रिटी इशू, हमें लगता है कि आप कंपनी छोड़ के जा रहे हैं और आप हमारे एम्प्लॉइज को लेके जाएंगे, सिंस यू आर वेरी इन्फ्लुएंशियल तो आप हमारे कुछ अच्छे एम्प्लॉइज मैनेजर आपके साथ जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि आपको रोक दिया जाए, आप घर बैठे। ओके। मुझे बहुत गुस्सा आया, सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक। बहुत बड़ा सेटबैक। और मुझे गुस्सा इस बात का है कि यार मैंने कंपनी को इतना सर्व किया और मैं किसी को साथ लेके भी नहीं जा रहा। Yes. मेरी अपनी जॉब कंफर्म नहीं है, इन्होंने मुझे डोमिनेट कर दिया। दैट वाज बेसिकली काइंड ऑफ वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको यार, ग्रजेस, लाइक यस। मैनेजमेंट ग्रज जो था ना, क्योंकि मैं ओनर से डायरेक्ट था और उनको बहाना चाहिए था ओनर के सामने मुझे जलील करने का कि यार ये बंदा तो हमारे Yes. employees तोड़ रहा है, ये कर रहा है। तो उन्होंने ये एलिगेशन मेरे पे डाला। ओनर ने भी गुस्से में कहा यार ये क्या बात हुई, मेरी अगेंस्ट, मेरी कंपनी के अगेंस्ट बंदा खड़ा हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी फायर कर दो। उन्होंने वहां से गोहार ले मुझे फायर कर दिया। अब जो है क्या करें, मार्केट में जाएं, जॉब ढूंढें। 2017 it was the turning point of my life and something that I would like to everyone to know कि आपको लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं। ओके, यहाँ पे सिनेरियो इज क्रिएटेड जी कि यू आर अ फैमिली पर्सन, यस, आप शादीशुदा हैं, ठीक है। 2016 में शादी हुई, 2017 में जॉब चली गई। एग्जैक्टली 2017 में लाइक आप शादीशुदा हैं एंड आपकी एक बहुत ज़बरदस्त आपकी जॉब थी जिसमें आप यू वर हैविंग द सैलरी ऑफ 135,000 135 अच्छा पगार होता था। एंड यू वर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस और यू ओन, भाई के साथ रहता था। भाई के साथ। वहाँ पे इतना बड़ा सेटबैक, क्या उस टाइम सोच रहे थे? व्हाट वाज योर थॉट्स एट दैट टाइम? देखिए उसमें आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, दैट प्लेज अ वाइटल एंड क्रूशियल रोल इन योर लाइफ। तो मैंने घर पे जाके किसी को नहीं बताया। आई टोल्ड माय वाइफ कि भाई कॉल आ गई है एंड आई एम फायर्ड। तो शी वाज लाइक डोंट टेल एनीवन इन द फैमिली, क्योंकि घर पे पता चलेगा तो पीपल हैव पिटी ऑन अस। हमें किसी का रहम करम पे नहीं पलना, आपने किसी को कुछ नहीं बताना। आई नो यू आर केपेबल, आपको जॉब मिल जाएगी, घर पे किसी को नहीं बताना आपने। ठीक है नहीं बताना। अब आई एम इन सर्च ऑफ अ जॉब, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज, जहाँ जा रहा हूँ। एग्जैक्ट ने जहाँ से ऑफर हुई नहीं थी, उन्होंने ऑफर लेटर आगे भी होल्ड कर दिया, उन्होंने मुझे हायर नहीं किया, जिसकी बेस पे मुझे फायर किया गया था कि आपकी जॉब हुई, आप दूसरे लोगों को जॉब दोगे। भाई मेरी अपनी जॉब तो कंफर्म होने दो। Yes. तो दैट वाज वन थिंग कि भाई वो जो एलिगेशन था वो झूठा साबित हुआ ना, Yes. क्योंकि एक बंदे की खुद की जॉब नहीं है। Exactly. मेरी जॉब हो जाती तो फिर आगे की बात थी, देखते क्या करते हैं। अब मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ तो मुझे इंटरव्यूज में लोग कहते हैं भाई यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, या हम आपको 60,000 ऑफर कर देंगे या 70,000 ऑफर कर देंगे। तो मैंने सोचा कि बेहतर है दोबारा टीचर बन जाओ। तो आई स्टार्टेड टीचिंग अगेन। मैंने 2017 में दोबारा टीचिंग शुरू कर दी, वही डोमिनो में पढ़ाना शुरू किया 5-6 घंटे के लिए। अब यह है कि डोमिनो 6 घंटे के मुझे 32,000 दे रहा था, तो आवरली वेज रेट बढ़ गया। और एक स्कूल टीचिंग शुरू कर दी। करते 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 2017 पूरा गुजरने वाला है, दिसंबर आ गया। ड्यूरिंग दैट टाइम माई फादर पास्ड अवे, ही हैड किडनी प्रॉब्लम, तो उनकी डेथ हो गई। माई मॉम हैड हार्ट अटैक। तो जो सेविंग थी जब तक वो भी खत्म हो गई, क्योंकि जब मुझे जॉब छुट्टी थी तो मेरे पास फिर 7,42,000 मेरे अकाउंट में थे। आहिस्ता आहिस्ता सेविंग में से भी खर्च करते करते सेविंग भी खत्म। नाउ यू लॉस्ट योर फादर, राइट? तो थिंग्स वर प्रीटी स्कैटर्ड। 17 गुजर गया, 18 तक पहुंचते पहुंचते जनवरी में ये हाल थे कि अब एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो रहे थे, क्योंकि सेविंग नहीं है। टीचिंग से 60-70-80,000 ही आ रहा है। तो मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। 50,000 कॉल सेंटर से मिलते थे, 50-60,000 मैं टीचिंग से करता था, और पार्ट टाइम मैंने कराची में रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। मेक बोथ एंड्स मीट, कि किसी से कुछ मांगना नहीं है। और इस सारी स्टोरी में घर वालों को अभी तक नहीं पता कि जॉब भी चली गई है और 1 साल से जॉब नहीं है।
पूरे सही। दिन में कितने आवर्स काम कर रहे थे? 20 घंटे। आई यूज टू स्लीप फॉर द सेक ऑफ स्लीपिंग जस्ट फॉर 3-4 आवर्स। मुझे ये रियलाइज बिल्कुल नहीं हुआ कि मैंने गलती की, क्योंकि मुझे फैमिली से सपोर्ट थी। माई वाइफ वॉज वेरी इनकरेजिंग, वेरी मोटिवेटिंग। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, होता है। मुझे कभी कभी लगता था कि शी इज डिप्रेस्ड नॉट बिकॉज के आई डोंट हैव अ जॉब, बट शी यूज टू लुक एट मी एंड से कि भाई आप, क्योंकि मैंने आपको आपके डिसीजन में सपोर्ट किया, तो अगर मैं आपको सपोर्ट ना करती शायद आप सुकून से वही जॉब करते रहते। शी यूज्ड टू से कि नहीं, आपने बहुत आगे जाना है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये है वो। तो शी वाज द ट्रू इंस्पिरेशन के शी यूज्ड टू पिंच मी ऑल द टाइम कि भाई आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे, मुझे पता है कि यू विल बी सक्सेसफुल और ये वो। तो शी हेल्प मी। और अब मैं रिक्शा चला रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ और कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ। सही है। मुझे रात को 2 बजे कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, मुझे कॉल आती है रावलपिंडी इस्लामाबाद से, कंपनी MTPC, उसके HR से, कह रहे हैं जी आपकी CV हमारे पास आई थी, वी हैव अ पोजीशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर, तो अगर आप इंटरव्यू के लिए आना चाहें। तो मैंने कहा भाई देखो कहाँ से, बोला रावलपिंडी। मैंने कहा इतने पैसे नहीं है कि मैं रावलपिंडी आऊँ, आप ऑनलाइन इंटरव्यू लें, अगर आप मुझे ऑफर करते हो, इफ आई एम हायर्ड आई जॉइन यू गाइस। अच्छा, जिस बंदे ने मेरी CV दी थी वो मियां मोहम्मद मोहसिन, जिस बंदे को मैंने रीजनल मैनेजर बनाया था। ऑलराइट। सही है। ही लेफ्ट MLM एंड वेंट टू MTPC एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। उसने मुझे कहा कि नहीं भाई, मैंने आपकी CV दी थी और यहाँ का जो पे स्केल है वो 100,000 रुपीज़ तक है, 90,000 से 1 लाख तक सैलरी देंगे, बाकी आप देख लें, इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनकी रेंज 1 लाख तक है। मेरा इंटरव्यू HR से हुआ, मैंने उनको कहा भाई मुझे, उन्होंने कहा जी 90,000 से 1 लाख। उन्होंने कहा आपका एक इंटरव्यू और होगा, जो हमारे डिविजनल हेड हैं मिस्टर हादी चौधरी, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, अगर उन्होंने आपको क्लियर कर दिया तो फिर आपको सैलरी आपकी मर्जी की मिल सकती है, नहीं तो हमारी जो रेंज है वो 100,000 है। मैंने उस टाइम आई गेस MTPC is द बिगेस्ट the biggest and the only company in Rawalpindi. ओनली कंपनी रावलपिंडी मेडिकल बिलिंग कंपनी। 2018 एक दो और आई थी, लेकिन मुझे लगता था कि अकेली कंपनी है वो। सही। इस एक लाहौर में थी क्योर MD के नाम से। MTPC मैंने हादी चौधरी साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने उनको बताया अपने बारे में सारा कुछ, तो उन्होंने कहा जी सैलरी, मैंने कहा 135,000 पे मैंने छोड़ा था, तो आप देख लें। उन्होंने कहा ओके विल ऑफर 135। तो 1,35,000 एक साल पहले अप्रैल में जॉब छूटी थी। अब देखें अल्लाह ताला की जात किस तरह से करती है। Yes. पूरा एक साल, फिर दोबारा अप्रैल, और वही 1,35,000। मतलब मेरी जिंदगी में से पूरा एक साल जैसे डिलीट हो गया। जहाँ से शुरू किया जहाँ से शुरू किया वहीं खड़ा हो, राइट। अब 1,35 पे शुरू किया, 26 अप्रैल को मैं MTPC आया, मैंने भाई से 20,000 रुपये उधार लिए, 16,000 का मेरा जहाज का टिकट हो गया, 4,000 मेरे जेब में थे, मैं पिंडी आ गया। एंड मीनवाइल उस एक साल में आपने जो कुछ सीखा होगा, आई थिंक वो बहुत बड़ा था। दैट वाज समथिंग दैट आई हैड इन माय पॉकेट। यस, वो बहुत बड़ा था। ग्रेट लर्निंग। Yes. वो वही लेकर मैं आया। उसका एक्सपोजर आई थिंक अनमैच है। अनमैचेबल, ट्रू। तो MTPC आ गए, 26 को ज्वाइन किया। मैंने एक घर देखा कोई 10-15 दिन बाद, I9 में किराए पे 27,000 रुपये मुझे घर मिला। ऑलराइट। ठीक है। बेगम को मैंने कहा अभी वहाँ रुको, 1 महीने बाद मैं आपको बुला लूंगा घर पर सेट करके। तो मैंने 27,000 रुपये घर लिया, घर के अंदर मैंने कारपेट बिछवाया और फर्नीचर के पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, गद्दा लेंगे और जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। तो शी केम, बर्तन वर्तन वहाँ से वो लेकर आ गई, किचन हमने सेट कर लिया। घर में अब फर्नीचर नहीं है, सिर्फ एक गद्दा है जो हमने बेडरूम में बिछा दिया, उस गद्दे पे हम लोग रहते थे। 1 महीने बाद हमने मोटर बाइक ली, सीरीज 70 जो होती है, मोटरसाइकिल ली। उसकी अगली सैलरी में हमने फ्रिज लिया, उसकी अगली सैलरी में हमने सोफे लिए ड्राइंग रूम के। तो इस तरह करते 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 हमने दोबारा से घर बनाना शुरू कर दिया। MTPC 4 महीने हो गए। अब जो है ना, हमें घर में फर्नीचर वगैरह लेना था, अभी कुछ कुछ उधार भी जमा हो गई थी, क्योंकि इस दौरान कुछ उधार लेने पड़ गए। तो फिर मैंने बैंक अल्फला से 3 लाख का लोन लिया और वो खर्चे पूरे किए, और सितंबर आ गया। सितंबर में MTPC में मेरा प्रोबेशन क्लियर हुआ, तो मैंने कहा जी प्रोबेशन सर क्लियर हो गया। अपने डायरेक्टर साहब को ईमेल की, सर प्रोबेशन क्लियर हो गया, ईमेल भी आ गई है, लेकिन एक चीज़ और होती है जिसमें सैलरी इंक्रीमेंट होता है आफ्टर प्रोबेशन, जो मुझे प्रॉमिस किया गया था। तो ही वाज लाइक, अब मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट कर रहा हूँ। अब मैंने उनसे पूछा भाई सैलरी, तो उन्होंने क्या किया, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में इधर मूव की। वो 1 हफ्ते बाद, मुझे 1 हफ्ता कोई जवाब नहीं मिला। 1 हफ्ता उन्होंने कहा जी ये देखो। मैंने जब देखा तो उसके ऊपर उनकी सैलरी स्लिप थी खुली हुई, उनकी सैलरी थी 1,10,000। ओके। मेरी थी 1,35,000। ओके। एंड ही वाज लाइक भाई ये बताएं मुझे, मैं आपका रेस कैसे रिकमेंड कर दूं? मैं कंपनी में 10 साल से हूँ, मेरा आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। आप 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं, चले जाते हैं, एंड यू हैव द 135K सैलरी। मैं तो आपको रेस नहीं रिकमेंड करूंगा। तो मैं आई वाज प्रीटी ब्लंट अगेन। मैंने कहा यार, तो इसका मतलब है जब तक आप कंपनी में बैठे हैं मैं इधर ही बैठा रहूंगा, मतलब मेरी कोई ग्रोथ नहीं है। ही वाज लाइक भाई यहाँ तो ऐसा ही होता है। और मुझे 4-5 और लोगों ने बता दिया
एमटीबीसी के अंदर कि यहाँ पे हिस्ट्री है, जो बंदा लाख से ऊपर हायर होता है विद इन 6 मंथ से तो खुद चला जाता है, ये कंपनी निकाल देती है। क्या रीजन थी? इंटरनल पॉलिटिक्स। ओके। बाहर से क्वालिफाइड लोग कंपनी हायर तो कर लेती है, यूएस माइंडसेट है ना, यूएस की मैनेजमेंट समझती है कि क्वालिफाइड लोग आने चाहिए, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो आगे लेके जाएंगे कंपनी को। लेकिन पाकिस्तान में ग्लास सीलिंग, लोगों को लगता है कि अगर कोई क्वालिफाइड बंदा आ जाएगा हमारी पोजीशन खा जाएगा। हालांकि होना ये चाहिए कि वी नीड हेल्पिंग हैंड्स। मेरे मेंटोर ने मुझे हमेशा ये सिखाया था कि नेवर हेजिटेट टू हायर पीपल हु आर बेटर देन यू, बिकॉज व्हेन यू हायर पीपल हु आर बेटर देन यू दे विल टेक यू miles away, right? When I start up my own company, that is the thing I do. I always hire the best people, and I don't tell them to do what to do. They do whatever they know. They even come and train me. They teach me. I learn from them, right? ओके, द स्टोरी इज फ्रॉम के जब उन्होंने आपको अपनी सैलरी दिखाई, देन व्हाट वाज योर स्टैंस एंड द रिएक्शन? मैंने उनको कहा, सर देखें, आपका मसला है ना, आप कंपनी के साथ खुश हो ना, एक 10 पे तो बैठे हुए हो। मेरी गलती तो नहीं है कि मुझे कंपनी ने 1.35 ऑफर कर दिया, मुझे तो ग्रो करना है, तो मैं ग्रो नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा? उन्होंने बोला देख लें, आपकी मर्जी है। तो अब हमारे दिमाग में एक अलग ही माइंडसेट चल पड़ा। हमने कहा अब एमटीबीसी में 1 महीना और बैठना है, लेकिन सीखना है कि एमटीबीसी है क्या, करती क्या है, व्हाट इज द बिजनेस मॉडल। अब मैंने क्या किया, मैंने लोगों से मीटिंग्स करना शुरू की कि बिजनेस डेवलपमेंट कैसे होती है, क्लाइंट ऐसा कहते हैं, क्लाइंट को क्या पिच करते हैं, आइडिया क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। तो जब मैंने ये मीटिंग्स करना शुरू की लोगों से, तो एमटीबीसी के इंटरनल लोग होते हैं, उन्होंने मैनेजमेंट को बता दिया कि ये बंदा तो अपनी कंपनी बनाने की सोच रहा है। उन्होंने मुझे फायर कर दिया। ओके, दैट इज अनदर डायलेमा इन आवर इंडस्ट्री कि अगर आप लॉयल एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको पुश बैक करेंगे, और जब आप कुछ अपना करने लगेंगे तो बोलेंगे ये तो हमारे अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, बस फायर कर देंगे। मैं फिर फायर हो गया। यानी आपकी यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे जॉब्स है उसमें लीडर नहीं बनाते, कि अल्टीमेटली ऑब्वियसली आप अपना एक सेटअप शुरू करें, आप लीडर्स नहीं बनाते। दैट इज द डायलेमा, यू राइट। लीडर्स नहीं बनाते, वो चाहते हैं कि बस जॉब ही करते हैं। एग्जैक्टली। तो अब क्या हुआ कि जी हम फायर हो गए। हमने बनाया एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एक फिजिबिलिटी प्लान, बिजनेस प्लान बनाया, और आइडिया ये था कि आई विल सेट अप अ मेडिकल बिलिंग कंपनी। वो मेडिकल बिलिंग कंपनी करेगी क्या, उसको एक इन्वेस्टर चाहिए जो पैसे लगाए, क्योंकि हम तो ब्रोक, टोटली ब्रोक। यस, सही है, जो मिल रहा है पैसा वो खर्च कर रहे हैं हर महीने, हैंड टू माउथ चल रहा है काम। सही है, तो इन्वेस्टर होगा। इट वाज बैक इन 2019 2018 सितंबर, ओके। अप्रैल में ज्वाइन किया, सितंबर में खत्म, और अब इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ। 1 सितंबर से जो मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, अब 2-3-4 लोगों को आइडिया पिच किया। जाहिद हनीफ जो कि एमएलएम जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, Yes. उसके ओनर को आइडिया पसंद आया। उसको मैंने ईमेल की, ही कॉल्ड मी बैक स्काइप के ऊपर। मुझे कहता है नहीं, आई लव दिस आइडिया, आई वाज थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप अ मेडिकल बिलिंग कंपनी, आई थिंक योर आइडिया हैज सम वर्थ, लेट्स हैव अ मीटिंग, आई हैव गॉट 2 पीपल फ्रॉम द यूएस, मैं उनको लेकर आता हूँ, शॉन और एक और बंदा था, उनको आइडिया प्रेजेंट करो। अब मैंने उनको कॉल पे जाके तैयार होकर पूरा आइडिया प्रेजेंट किया, बिजनेस प्लान दिया उनको। तो दोनों गोरे कहते हैं कि इट्स अ फ्लॉप आइडिया। Why? Have you ever been to US? मैंने कहा no. कहते हैं have you ever done something like that before? No. He said then we don't want to invest. It's a flop idea. You are saying that you will cold call doctors from Pakistan. You don't know anyone in the US and you will tell them to give their business like it's a service industry. और जो डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी अपना किसी न किसी से काम करवा रहे होंगे। इट्स टोटली फ्लॉप आइडिया कि वो अपना बिजनेस छोड़ के किसी और रनिंग कंपनी से नई कंपनी के साथ आ जाएं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, तो मैंने कहा भाई आई थिंक ट्रस्ट ऑब्वियसली। यस, क्योंकि पैसा जो लगाता है इन्वेस्टर वो उसका हक बनता है, और जाहिर सी बात है आउटर लुक में ये लगता ही फ्लॉप आइडिया है। यस, खैर जाहिद हनीफ ने मुझे कॉल की उस मीटिंग के बाद, मुझे कहता है नहीं, आई थिंक योर आइडिया हैज सम वर्थ। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग तुम्हें नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ 5 साल काम किया, मुझे लगता है कि तुम कुछ कह रहे हो तो तुम कुछ सोच के कह रहे हो, तुम कर जाओगे। लेकिन मैं अगर अकेला आता हूँ तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम से कम। बेसिकली ये टेक्निक होती है बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स की टेक्निक होती है कि वो आपको फुली अथॉरिटी नहीं देंगे, वो आपको फंसा के रखेंगे। ठीक है, उसने मुझे कहा अच्छा 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि आप मेडिकल बिलिंग कंपनी बनाओ, आपका जो आइडिया है उस पर करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम से कम रखनी है, और दूसरी बात यह है कि अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो कोई मसला नहीं, हमारा दूसरा एमएलएम तो चल रहा है ना। यस, दे वांटेड मी टू बैक इन दोज ऑपरेशंस। ओके, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे जब से मैंने छोड़ा था, पूरा 1 साल वो भी स्ट्रगल ही कर रहे थे, मैं कर रहा था तो साथ में कंपनी भी स्ट्रगल कर रही थी। तो उनको लगा कि यार एक बंदा वापस हमारे पास एनसीएम आ जाता है, तो इसके दिनों में मार्केट, हमारा बहुत अच्छा नाम था, हमारे काम बहुत अच्छा चल रहा था, अगर वो कम हुआ है तो ये कम से कम उसको संभाल लेगा। यस, तो उन्होंने मुझे कहा आ जाओ। तो हमने एक कंपनी बनाई जीएसबी के नाम से, ग्रीन सेंस बिलिंग। दैट वाज द फर्स्ट वेंचर ऑन अ पार्टनरशिप बेसिस। अगेन एक और गलती विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल, उन्होंने कहा जी कितने बंदे चाहिए, मैंने कहा आखिर मतलब बहुत बहस हुई। अगेन आई एम कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने कहा ज्यादा लोग होने चाहिए, 5-10 लोगों की टीम। उन्होंने कहा जी एक काम करो,
2 लोग रखो, तीसरा मैं खुद। मैंने कहा कह रहे हैं आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे 1.5 लाख चाहिए भाई, एटलीस्ट मेरे खर्चे पूरे हों। 1.5 लाख रुपए मेरी सैलरी और 2 बंदे रखूंगा, एक 80,000 रुपये, एक 70,000 रुपये, 1.5 लाख उनका, तो 3 लाख रुपए महीना। जो आपका ऑलरेडी इस्लामाबाद में ऑफिस है जिसमें मैं रीजनल मैनेजर था, उसी ऑफिस में मुझे एक रूम देते हैं, मैं उसी में काम करना शुरू करता हूँ और पहला क्लाइंट आ जाएगा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सही है। तो मैंने कहा जो आपकी मैनेजमेंट है उनसे मैंने बात नहीं करनी, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा, इट्स अ सेपरेट वेंचर। गलती क्या की, उनसे मैंने कुछ रिटर्न में नहीं लिया कि अगर कंपनी बन जाती है, ग्रो कर जाती है, तो हमारा परसेंटेज शेयरिंग क्या होगी। Oh, yes. आप तो बहुत दिखाया कि देखो नहीं, इफ यू कैन पुल दिस टुगेदर यू विल बी सक्सेसफुल, यू हैव योर ओन होम इन इस्लामाबाद, और ये हो जाएगा और यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। सिर्फ ख्वाब, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं है। खैर हम फिर से लग गए जज्बा लेकर, ग्रीन बिलिंग की वेबसाइट बनाई, वेबसाइट भी खुद बना रहे हैं, लोगों से मतलब काम करवा रहे हैं, उसकी फेसबुक आईडी, उसका लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वो सारे बनवा के कोल्ड कॉलिंग में खुद से 200 300 कॉल पर डे कर रहा हूँ। जो मेरे कोल्ड कॉलर्स हैं वो कम कॉल्स कर रहे हैं, मैं ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली। उनको तो सैलरी लेने चले जाना है। तो अल्लाह की तरफ से क्या हुआ कि 3 महीने बाद हमें फर्स्ट कॉल बैक आई एक क्लाइंट की, इट वाज एन इंडियन क्लाइंट, और मुझे कहते हैं अच्छा हमने फ्रस्ट्रेशन में आके, जो मार्केट रेट था गोइंग रेट 3%, 4%, 5% पे बिलिंग डॉक्टर्स को यूएस में करके देते हैं, हमने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने लोगों को बोला यार क्लाइंट आना चाहिए, तुम 2% बोलना शुरू कर दो। ओके। तो हमने वॉइस मेल्स पढ़ना शुरू किए कि वी आर अ मेडिकल बिलिंग कंपनी एंड वी आर ऑफरिंग बिलिंग एट जस्ट 2%। ओके। तो ही वाज एन इंडियन डॉक्टर, उसको लगा 2%, वो 4 दे रहा था किसी और कंपनी को। ही गॉट अट्रैक्टेड, उसने कॉल बैक की, कॉल मैंने ली, उसने कहा जी हेलो माय नेम इज सो एंड सो एंड आई हर्ड यू गाइस आर ऑफरिंग बिलिंग एट 2%। आई सेड यस इट इज। सो समहाउ हमने इसको क्लोज किया। उसकी फर्स्ट इनवॉइस आई $6,000। हमारा 3 महीने का खर्चा ही $6,000 था, 9 लाख रुपए, 150 रुपए का डॉलर था। 3 महीने में हम ब्रेक इवन कर गए। कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया, छोटे छोटे क्लाइंट 1-2 और आना शुरू हो गए। अब जब ग्रो करना शुरू किया तो हमारी जो मैनेजमेंट बैठी थी, जिनसे मैं पहले फायर हुआ था, यस। दे वांटेड टू इंटरवीन। उन्होंने कहा जी उनको लगा कि बिजनेस लुक्स गुड, ग्रोथ भी है इसमें, तो अब हमें सीखना चाहिए, हम दोस्त बन जाते हैं इसके, तो दे वांटेड टू इंटरवीन। मुझे लगा कि नो आई डोंट थिंक सो आई शुड ट्रस्ट दिस पीपल। मैंने स्ट्रेट अवे ब्लंटली जायद अली साहब से मीटिंग की और मैंने कहा कि आई एम डन, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। अब हमने ग्रीन सेल बिलिंग छोड़ दी, हम फिर जॉबलेस, ना बिजनेस ना जॉब, क्लाइंट्स भी उन्हीं के पास, एम्प्लॉयज भी उन्हीं के पास। अगेन बैक टू स्क्वायर वन। घर आया, बेगम को बताया, आई लॉस्ट इट। ओके। Right? बैक इन 2019 आई गेस। This is 2019 now. यस। 2019 का दिसंबर हो गया तकरीबन, ठीक है। अब क्या होता है कि another friend of mine again started finding investors। मेरा एक और दोस्त, अच्छा ये वो दोस्त है जिसके कॉल सेंटर में 50,000 पे जॉब कर रहा था, साथ में रिक्शा चला रहा था और साथ में टीचिंग कर रहा था। ये यूएस में गया हुआ है और इसको मैंने कॉल की तो इसने कहा जी मैं यूएस में, बताओ क्या करना है। मैंने कहा मेडिकल बिलिंग कंपनी ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बातें हुई, मसला वारी चल पाए। उसने कहा डोंट वरी, आई एम कमिंग टू इस्लामाबाद डायरेक्टली, आई विल मीट यू, टेल मी हाउ मच यू नीड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लेट्स स्टार्ट। उसके साथ स्टार्ट किया। अब हमने कंपनी बनाई डिजिटॉनिक्स केयर के नाम से, 10 लोगों की टीम, काम शुरू किया। मार्च 23 को कोरोना, इन कोविड। यस। कोविड शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी घरों में बैठ जाएं, आप वर्क फ्रॉम होम करें, ऑफिस में अलाउ नहीं है। आई हैड अ मीटिंग विद माय टीम, मैंने कहा भाई देखें 10 लोग हैं हम लोग, आज हमारे पास इन्वेस्टर भी है और हमारे आइडिया पे इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है, हम बिजनेस ग्रो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर घर बैठ जाएंगे तो वी हैव नो गारंटीज, घर बिठा के कोई पैसे नहीं देगा। तो अगर आप ऑफिस आ सकते हो, F11 में यहाँ पे हमारा ऑफिस था, ये यहाँ पे पार्क पॉइंट टावर है, यस। पार्क एवेन्यू कौन सा है, नाम भी भूल गया अब तो। खैर इसमें हमने एक फ्लोर लिया, एक अपार्टमेंट लिया, उसमें हमने काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ ईयर हमारी टीम 30 लोगों पे चली गई और बिजनेस ग्रो कर रहा था। अगेन हैड द सेम थिंग जो होता है पार्टनरशिप में, मुझे लग रहा था मुझे 50% मिलना चाहिए, ही वाज लाइक आप 10% ले लो, 15% ले लो, तो वी कट टाइज और अब दोबारा मैंने स्क्वायर वन जीरो और घर पे आ गया मैं। फिर आई स्टार्टेड 24/7 कंसल्टेंसी ओके। 2021 जुलाई 2021 विद 4 पीपल। मेरे घर की जो डाइनिंग टेबल थी उठा के मैंने छत पे रखी, ममटी वाले कमरे में 4 कंप्यूटर्स लिए और काम शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव अ टीम ऑफ 600 पीपल। लोग कौन थे माशाल्लाह। जिन्होंने, वो 4 लोग कौन थे? दानिश, अदनान, आबिद मासूम और 1-2 और लड़के थे। Like were they your friends, relatives? Yeah, they were kind of friends. 2 relatives, 2 friends. Okay. दे आर स्टिल विद यू? Unfortunately, the 2 are not. So half of them are gone. अब देखें, there is another thing कि आप प्रोफेशनल लाइफ में या बिजनेस में हमें लगता है कि हम जब किसी लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं और जो शुरू में साथ होंगे वो एंड तक साथ चलेंगे, ऐसा भी नहीं होता। यस, एग्जैक्टली।
change, their priorities change, तो आपको वो भी happily admit करना चाहिए. Yes, exactly. सही है? Okay. तो थ्रू दिस इंस्पायरेशनल स्टोरी ऑब्वियसली इतने सेटबैक्स के बाद और इतने चैलेंजेस के बाद लाइक यू केम हियर. अब इस पूरी जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था लाइक द फेलियर जो आपको मिले, व्हाट वाज द बिगेस्ट फेलियर? मैं इसको जल्दी जल्दी रैप अप करूँगा. व्हाट वाज द बिगेस्ट फेलियर थ्रू आउट द टाइम, जिसको आप एक शॉर्टली वे में आप बताएंगे कि ये वो फेलियर था जिसने आप कि होल जो वो एक सिनेरियो था वो चेंज कर दिया था, डायरेक्शन आपको इतनी बेहतरीन दे दी थी, लाइक यू वांटेड टू बी एट द प्लेस जहाँ पे अभी आप हैं. आई थिंक वो जो एक साल मैंने जॉबलेस गुजारा था ना, दैट वाज द बिगेस्ट टाइम ऑफ हार्डशिप्स जिसने मुझे प्रिपेयर किया. अगर मैंने वो टाइम अगर छोटा होता ना, तो मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग और रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो बिल्ड हुई थी विद टाइम वो नहीं होती. अब मुझे लगता था कि यार एक साल जॉबलेस रह लिया मैंने, इससे ज्यादा क्या हो सकता है. ठीक है, तो आई यूज टू टेक बोल्ड डिसीजंस. वरना आपके एक कंपनी आपने बनाई है, उसमें चलो कुछ नहीं, आपको 2-2.5 लाख रुपए फिक्स सैलरी मिल रही है, प्लस आगे आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि साल 2 साल बाद आपको इस्लामाबाद में 3 करोड़ का घर देंगे. ये ऑफर थी ग्रीन सन बिल्डिंग ओनर की तरफ से कि भाई आपको 3 करोड़ का घर इस्लामाबाद मिलेगा 3 साल बाद. तो मुझे लगता था कि 3 साल बाद अगर मैं डॉलर्स में अर्न करूं तो महीने में 3 करोड़ आना शुरू हो जाएंगे. तो ये लॉलीपॉप ही, आई डोंट थिंक आई शुड टेक इट. तो मैंने उसको छोड़ दिया वहां पे. तो वो क्योंकि मैं यूज्ड टू कंपेयर कि वर्स्ट क्या हो सकता है. वर्स्ट ऑलरेडी हो चुका था. Yes, exactly. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इट्स ओके, आई गॉट एक्सपोजर टू द न्यू इंडस्ट्री, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर You were kind of like ready to face everything. alhamdulillah. That was, and सबसे बड़ी सपोर्ट योर फैमिली, योर स्पाउस, योर वाइफ इज देयर विद यू. फिर आपको कोई टेंशन नहीं है. उसने कभी मुझसे डिमांड नहीं की मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे मेकअप लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. शी नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग. इवन कि मैं खुद कहता हूँ कि भाई कुछ बताएं शॉपिंग पे जाना है, तो वो कहते नहीं इट्स ओके, आई एम फाइन. Okay. So how were you a different employer बाकियों से, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे शिफ्ट्स आए जिंदगी में. Yes. तो आप कैसे डिफरेंट है उन लोगों से? देखें, I came into medical billing industry. तो medical billing industry में होता यह था कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ वर्कलोड दिया जाता था, ओनरशिप नहीं दी जाती थी, उनको कंट्रोल और अथॉरिटी नहीं दी जाती थी. तो आई वाज काइंड ऑफ पर्सन, मैंने कहा कि आई विल चेंज द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट. मेरा पहला लोगो ये था कि वी आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग रन एंड वी आर हियर टू चेंज द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट. वो डायनामिक्स क्या आते हैं कि हम जो टैलेंट है उसको ऊपर लेकर आएंगे. अगर एक बंदा 6 महीने में मैनेजर बन सकता है उसको मैनेजर बनाएंगे. क्योंकि बाकी कंपनीज का कल्चर ये था कि 6 साल में मैनेजर बनोगे आप, या 10 साल में मैनेजर बनोगे, और फिर मैनेजर पोजीशन को आपने, हर पोजीशन को आपने 2 साल सर्व करना है. आप बैकअप टीम लीड 2 साल रहोगे, 2 साल टीम लीड बनोगे, 2 साल असिस्टेंट मैनेजर, फिर 2 साल मैनेजर. तो मैनेजर बनते बनते आपको 10 साल लग गया. फिर आपने 2 साल मैनेजर, फिर आपने असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है, फिर आपने डायरेक्टर बनना है. तो जब मैं मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में आया तो मेरे जो डायरेक्टर्स थे वो 6-6 महीने 7 साल के अंदर डायरेक्टर प्रमोट हो गए थे. सही है. तो दूसरी बात है कि हमने फिर लोगों को अपने हेल्प करना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, हमने गाड़ियां देना शुरू किया. वी आर द फर्स्ट मेडिकल बिलिंग कंपनी इन इस्लामाबाद जो अपने एम्प्लॉइज को गाड़ियां लेकर उनके नाम इम्प्रेसिव कंपनी की नहीं होती, गाड़ी की आपने. और अच्छा, जब हम सोच रहे थे गाड़ियां देने का तो हमारे ध्यान में आया था कि हम एक काम करेंगे, हम रेंट पे बैंक से गाड़ी ले लेंगे. ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर ना. सर्टन पोर्शन एम्प्लॉय देगा, सर्टन पोर्शन कंपनी दे देगी. मतलब 60% कंपनी ने, 40% एम्प्लॉय ने इंस्टॉलमेंट देनी है. अब मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मेरे जहन में आया कि यार एम्प्लॉय ने अगर लेट से 30 लाख की गाड़ी है, 16 लाख कंपनी दे, 14 लाख एम्प्लॉय ने देने, तो एम्प्लॉय को 14 लाख अगले 2 साल में देने, या 3 साल में, या 5 साल में देने, वो तो 28 लाख होने लेगा. तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं. उस टाइम पे मेरा जो प्रॉफिट था, मैंने कहा एक काम करता हूँ, 6 गाड़ियां देनी थी. मैंने जो शुरू के 6 लोग थे ना, मैंने कहा इनको 6 के 6 को गाड़ियां देनी है जो साथ थे. कंपनी को बने हुए 6 महीने हुए हैं. कंपनी सोच क्या रही है, अपने फर्स्ट 6 एम्प्लॉयज को कारें देने की. सही है. आपने देखा होगा यहाँ पे कंपनी 10-10, 20-20 साल में भी एम्प्लॉयज के बारे में कुछ नहीं सोची. एग्जैक्टली. तो हमने 6 एम्प्लॉयज को गाड़ी देने का सोचा. बैंक से लेते तो 6 एक साथ ले लेते. मेरा प्लान ये था कि मैंने जहन में एक बात आई कि हम एक काम करते हैं, हम 2-2 गाड़ियां लेते हैं, कैश पे खरीदेंगे गाड़ियां, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द इंटरेस्ट थिंग. गाड़ी कैश पे लेके एम्प्लॉय को डायरेक्ट दे देंगे. अब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा देखो यार 2 प्लान है. एक ये है कि हम 6 गाड़ियां एक साथ ले लें, बैंक से लें, आप लोग इंस्टॉलमेंट देते रहो, जो मेरा हिस्सा है वो मैं दे दूंगा, डाउन पेमेंट मैं कर दूंगा, या डाउन पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट मैं देता रहूंगा, लेकिन उसमें आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी और पैसे भी ज्यादा लगेंगे और सूद है उसमें, बरकत भी नहीं होती. तो एक काम ये करता हूँ कि मैं अपने थोड़े से एक्सपेंसेस को स्क्वीज करके मैं आपको गाड़ियां 2-2 हर महीने 2-2 गाड़ियां परचेज करके कैश पे लेके दे देता हूँ.
तो दे लव द आइडिया। तो हमने पहले 2 गाड़ियां ली, दोनों L7 ली, 32 लाख की गाड़ी ली हमने, एम्प्लॉइज के नाम पर ट्रांसफर कर दी। ओके, अगले महीने हमने 2 होंडा सिटी ली, 2 एम्प्लॉइज को दे दी। उसके बाद फिर हमने 2 होंडा सिटी ली, हमने 6 गाड़ियां अपने ये employees को बहुत बहुत बड़ी मोटिवेशन है किसी भी पर्सन के लिए जो कि इतना मैसिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी। अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें देखे ना, आई चेंज द डायनामिक्स। जो मैंने डिसाइड किया था, जब मुझे लिटरली आई हैव टेक्स्ट मैसेजेस ऑन माय फोन, मुझे लोगों के मैसेजेस आए, डिफरेंट ओनर्स ऑफ द मेडिकल बिलिंग कंपनीज, और उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग द इंडस्ट्री, आप हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? एंड आई वाज लाइक, आई एम डूइंग इट फॉर माय पीपल, दे स्टूड विद मी, दे हेल्प मी ग्रो, और मैं ग्रो करूंगा। So you kind of brought the change that you were yourself looking for. एग्जैक्टली, आई एम अच्छा, स्टिल फिर ट्राइंग। आप कम्युनिटी वर्क की तरफ किस तरह से आए? मतलब since you are contributing massively to Eoto Foundation specifically, Right. तो what motivated you and किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं? देखिए, मुझे हमेशा से लगता था कि देखें, आपको यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और फिर मेरे कुछ लोगों से, जिन लोगों से मैं रहा, एक अच्छी बात ये थी कि वो हमेशा से कम्युनिटी सर्विस कामों में रहे हमेशा से। उन्होंने कहा कि देखिए, वी हैव टू रीपे बैक टू द कम्युनिटी, इफ यू आर ग्रोइंग देयर हैज टू बी सर्टेन पोर्शन दैट शुड बी गिवन टू द पीपल दैट दे डिजर्व, राइट? अगर अल्लाह ने आपको ब्लेस किया तो यू शुड बी हेल्पिंग अदर्स। तो वन ऑफ द थिंग जो मैं एम्प्लॉय के साथ कर रहा था, क्या कर रहा था, यही कर रहा हूँ ना, इट्स अ कम्युनिटी सर्विस। एग्जैक्टली। दे आर एम्प्लॉइज, दे आर वर्किंग फॉर मी, वो मुझसे जबरदस्ती नहीं मांग सकते। मतलब कोई भी एम्प्लॉय डिमांड तो नहीं करेगा ना अपने एम्प्लॉयर से कि मुझे कार दे दो 6 महीने बाद। कंपनी को 6 महीने स्टार्ट हुआ है, मतलब मैंने कंपनी में जॉब किया जो 15 साल से थी कंपनी, 5 साल मैंने जॉब किया, उन्होंने कार नहीं, उन्होंने कहा पॉलिसी नहीं है, कार मिलेगी ही नहीं। बैंक से तो दूर की बात है, है ही नो पॉलिसी। सही है। इवन कि मैंने अपनी शादी के लिए लोन मांगा था, तो उन्होंने कहा जी आपको 2 सैलरीज मिलेंगी। 90,000 सैलरी थी उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई, और उन्होंने 2 सैलरीज दी, 1,80,000, और अगले 4 महीने में उन्होंने काट लिया 45,000 कर, राइट? तो वो तो था ही नहीं। तो आई वांटेड टू बी अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयर दैट हेल्प्स एवरीबॉडी। उसमें चाहे वो मेरे अपने एम्प्लॉयज हैं, चाहे whoever comes across, बहुत सारी, like right now we have like 20, 30, almost 50 plus families that 24/7 is taken care of, right? Every month we send them whatever we could. Massive. Yeah, alhamdulillah, that is what 24/7 is. Like Massive. me and my wife, we both think कि अल्लाह ने हमें जो दिया है वो हमारा नहीं है, जो हम खा जाएंगे वो हमारा है, जो खर्च कर जाएंगे। सर आपका एम्प्लॉय अगर खुश है आपसे, दिस इज द रियल सक्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Then other thing is कि हमने अपने एम्प्लॉयज के लिए कारें नहीं दी, हमने कोई 50 ऑलमोस्ट 50 मोटर बाइक्स हम दे चुके हैं अपने एम्प्लॉयज को। 9 उम्रे के टिकट्स इंशाल्लाह इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में हम 9 लोग उम्रे पे भेज रहे हैं। मैसिव। वो हम डिफरेंट गुरंदाजी वगैरह करके उसके ऊपर हमने एक प्लान रखा हुआ है। और उसके अलावा वी डू व्हाटएवर वी कुड फॉर आवर एम्प्लॉयज। मेडिकल इंश्योरेंस है, प्लस हमने राशन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कराई। अच्छा, दैट वाज समथिंग दैट एमटीबीसी यूज्ड टू ऑफर, उन्होंने अभी खत्म कर दिया, लेकिन एमटीबीसी अपने एम्प्लॉयज को मंथली राशन दिया करता था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगता था कि जब मैं एक स्टेज पे पहुंचूंगा अपनी कंपनी में तो विल स्टार्ट ऑफरिंग दैट। तो जब हमने लोगों को राशन देना शुरू किया, हम 200 लोग थे, आज माशाल्लाह हम 600 लोग हो चुके हैं। तो दिस इज हाउ यू ग्रो। जब आप अल्लाह को पार्टनर बनाते हैं, जब अल्लाह के लोगों के लिए Exactly. करते हो, तो अल्लाह ताला आपको हेल्प करता है। Sir, it was an amazing podcast. थैंक यू वेरी मच। सबसे बेहतरीन इस पूरे पॉडकास्ट में ये था कि द जर्नी ऑब्वियसली इट वाज इंस्पायरेशनल, बट द कनेक्शन विद द फेलियर वो उससे बड़ी चीज़ थी कि हम यहाँ पे इस जो भी फेलियर केस होता है उसको हम लोग बड़ा एक निगलेक्टेड एक सोर्स से देखते हैं, बट यू टर्न्ड आउट टू बी द अल्टीमेट सक्सेसर जस्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर। हमें इससे ऑब्वियसली यही टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट सक्सेस, वही फेलियर आपका बिगेस्ट सक्सेस में कन्वर्ट होता है। सो इट वॉज अ रियली इम्प्रेसिव एंड वी आर ग्रेटफुल कि आपने पूरी स्टोरी, पूरी अपनी इंस्पायरेशनल थॉट्स एंड द जर्नी व्यूअर्स के साथ शेयर की। Thank you very much. I actually love to share because I want to tell the world that I'm not super intelligent. कि मतलब आप थ्रू आउट एज आपने लिया या ओ लेवल, ए लेवल करके ही आप अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। You should have the mind and Passion vision होना and passion, Yes. right? And passion to serve. Yes. The best part is कि आपने जब कुछ भी बनना है, आपने अपने लिए कोशिश करते रहो, नहीं बन पाओगे। आप कोशिश करो कि you will work with the people. You will offer your help as much as सबको you साथ can. लेके चलना। सबको साथ लेकर चलना है। You offer help, you become successful. मुझे लगता है कि जो मैंने लोगों के लिए किया है, अल्लाह ताला हर बार जब मैं कुछ स्टेप फॉरवर्ड कर रहा था लोगों के कुछ करने के लिए, अल्लाह ताला उसमें मेरा रिस्क ऐड कर रहा था। तो हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है कि हमें 10 लोगों की जरूरत है, हम 20 हायर करते हैं। हमें 20 की जरूरत है, हम 40 हायर करते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को कन्विंस कर लिया और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने वो निशानियां दे दी हैं कि अगर आप लोगों में रिस्क बांटोगे, आपका रिस्क बढ़ेगा।
That's definitely massive. आप employment opportunities भी create कर रहे हैं, Yes. community को भी serve कर रहे हैं. So we are really grateful to you. Thank you It was very great much. Thank you. speaking to you. I Sir, always appreciate Eoto Foundation. मेरी आपसे इनिशियल डेज में बात हुई थी कि जिस तरह से आप लोग जो काम कर रहे हैं, I was actually thinking of setting up my own school for like on behalf of 24/7 we should do something for the kids. लेकिन जब मैं आपसे मिला था मैंने कहा था मुझे लगता है कि मेरा वो विजन पूरा हो गया तो I can continue to help you guys grow. Jazakallah. तो Thank I'm you, sir. with you guys. आपको जहाँ जहाँ मेरी जरूरत है I'll try to make myself available inshallah Massive. and we'll grow it big time. Sir, Really grateful to you. a last question. Any message for the youth जो कि अब आ रही है, not in this particular field, but जो graduate होने वाली है, what is the biggest message आप उनको दे सकें जो कि अपने last few semesters में like 7-8 semester या 9-10 semester में जो अब आगे professional life में आ रही है, what is the biggest message you can give to them? देखिए मुझे ये लगता है with all these years of learning and hard work and experience and of course the success I've achieved, मुझे लगता है कि as an individual you should find a niche and work on it. प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें निश समझ नहीं आ रहा था हमें करना क्या है. फिर जब तक हम समझते हैं हम 4-5-6 चीजें ट्राई करके 5-6 साल ज़ाया कर चुके होते हैं. तो अगर आपको ये चीज अर्ली स्टेज में अपने करियर के समझ में आ जाए कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, then keep working on that again. Failure is a part of life. Yes. देखें why I became successful, क्योंकि मेरा निश क्या था, अमेरिकन मार्केट. I used to be a good negotiator talking to American people. मुझे लगता था कि I can convince them better if I have to sell something to American, I can do it. अब लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. तो मैंने वो निश पकड़ा कि अमेरिकन मार्केट इज समथिंग दैट आई कैन कन्विंस, आई कैन डू वेल विद देम. अब लोग नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है. मेरा प्रॉब्लम क्या है, आई हैव टू डू समथिंग. आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ चेंजिंग पीपल्स ओपिनियन अबाउट मी, right? And someone else's opinion of me does not have to become my reality. My reality is something that I know who I am, right? People will perceive me differently as per their circumstances. हम में से बहुत सारे लोग इस टेंशन में लगे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा. तो वो एक इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर हो गया था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. तो उस रोग को हम अगर छोड़ देंगे और अपने पर फोकस करें, एक निश पकड़ें, उस पर मेहनत करें, एफर्ट करें, you will definitely be successful. Thank you so much, sir. Inshallah, this will be the obviously a big motivation for the viewers and especially for the youth. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you Noor. Thank you. Thank you so much for to the viewers जिन्होंने देखा podcast, and I really want कि आप support करें each one foundation को, and do like, subscribe and do comment कि आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा motivation क्या थी throughout this particular journey. Thank you so much. And this podcast is sponsored by the studio.pk. आप इनसे contact कर सकते हैं for the best content on YouTube, on Facebook and on Instagram. And इसके अलावा state of the art studio plus the accessories they have for the podcast and for anything जो आपके event के लिए important है.